today's webinar on networking guidelines of ICI. And on this subject, our very learned CA Jagjit Singh ji, Jag C with us. I welcome Jagjit Singh ji. I also Thank you, sir. welcome the Thank you. convener of this study circle, Hemant Pava ji, and all the attendee on behalf of Karol Bagh Study Circle. And to introduce him very briefly, but there is no need to introduce him. He is not a new to our study circle, but it's still my duty to introduce him very briefly. Jagjit Singh ji is a graduate commerce from Delhi University in 1998. He did chartered accountancy course in May 2008, certification course of concurrent audit of banks from ICI, certificate course of forensic accounting and fraud detection ICI, certificate course of goods and service tax ICI, certificate course of anti-money laundering from ICI. He has also a very wide experience as a speaker, having experience in the field of soft skill, accounting, accounting standards, professional ethics, income tax, DVAT, service tax, GST, outcome of budgets, forensic, bank audit, and other many areas in the various branches of Northern and Central of ICI since 2008. He is also a GST trainer in the training Office of the Director General of Audit, Delhi. He has been awarded as Best GMCS Faculty Award of NIRC of ICI in 2015. He has given presentation in various seminars of institutions, universities and study circles like ICI, branches of ICI, CP Study Circle of ICI, MBA Institute and IP University, etc. He has also given various presentation in webinars also since the lockdown period. And in the last but not the least, in lighter mode, he is our Michael Jackson. And we lovely call him as a Jax. So with this, I welcome him and over to you, sir. Thank you, sir. Thank you, Rajesh ji. हमारे बड़े भाई साहब Rajesh ji. With the grace of you, today I got again the next opportunity in this study circle, Pusa Road CP Study Circle. So thanks a lot, Rajesh ji, for giving one more opportunity. And thanks to Hemant Pava ji is also, he's working as a convener of the study circle. All the present, the respected member in this webinar. Today, we have the topic. It's a very new topic. Recently, Institute has issued some guidelines related to the networking of the partnership firm, the networking of the CA practicing for the CA practicing person ke liye, professionals ke liye. So it's a very new topic, and definitely there is a validation for the practicing chartered accountant if we apply this guidelines, if we follow this guidelines in our practice area. अभी तक सर राजेश जी जो मार्केट में एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, कहीं पर ऐसा लगता है कि अगर हम इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, अगर नेटवर्किंग में जाते हैं, so when we are sharing the knowledge of our client with another chartered accountant, so there is some कुछ गैप्स हैं जिसकी वजह से डर लगता है, इनसिक्योरिटी फील होती है कि कहीं हमारा क्लाइंट ना चला जाए या फिर उसके साथ हम फीस हमें शेयर करनी पड़ेगी. बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं. जबकि मैं आपसे डेफिनेटली इस टॉपिक को मैं जब कवर करूंगा, so I will mention so many things which those are mentioned in this guidelines, बहुत clearly explained है. और साथ में मैं आपको इसके differences के बारे में बताऊंगा, क्योंकि guidelines की जब मैं बात करूंगा, so we have three concepts. One is alliance, another one is network, the third one is network with the leading firm. इसके साथ साथ हमें पता है क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एट प्रेजेंट जो मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दे आर यूटिलाइजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ मर्जर. तो मर्जर भी एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है. मर्जर में भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. हमने एलएलपी की फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. हमारी पार्टनरशिप फॉर्म जो है एलएलपी की शेप में भी चल रही है. एंड साइड बाय साइड वी आर रनिंग वन द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनीज ऑल्सो. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस से रिलेटेड हमने कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करा रखी है. सो हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम चाहें तो अपनी प्रैक्टिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो उस कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करा के इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लेकर जब हम वो कंपनी रन करते हैं तो उसमें हम अटैच फंक्शन नहीं कर सकते.
कुछ वहाँ की लिमिटेशंस हैं। मर्जर की बात करते हैं तो राजेश सर, उसमें मर्जर में एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे 5 साल खत्म होने से पहले डी मर्जर के बारे में प्लान करते हैं कि डी मर्ज करके अपनी पुरानी फर्म को वापस ले लिया जाए, और वो लॉन्ग रन तक नहीं चलता वो मर्जर। और 5 साल से पहले जब हम उसे डी मर्ज कर देते हैं, when we are looking for the demerger, we want our firm back so that हमारी जो एग्जिस्टेंस है, जैसे सपोज करें कि मैंने राजेश सर के साथ मर्जर कर लिया और अभी मर्जर को 4.5 साल हुए थे, हमने 1-2 काम किए, बैंक के असाइनमेंट किए हमने मिलके राजेश सर के साथ, और मैं राजेश सर को कहता हूँ सर ये फर्म का नाम जो है ना सर, ये ज्यादातर ये 90% तो आपसे रिलेट करता है, तो मुझे अपनी फर्म वापस चाहिए, तो सर मैं आई एम लुकिंग फॉर अ डी मर्जर। मुझे एक जगह पे इनसिक्योरिटी फील होती है कि मेरी जो फर्म 5 साल पहले की है उसकी एग्जिस्टेंस ना खत्म हो जाए। लेट्स से माय फर्म नेम इज जगजीत सिंह एंड एसोसिएट्स, और जगजीत सिंह एंड एसोसिएट 5 साल पहले मैंने 4 साल पहले बनाई थी, और 4.5 साल के लिए हमने मर्जर किया, और उसके बाद फिर मैंने राजेश सर की जो फर्म थी मेन जिसमें हमारा मर्जर हुआ था, बिकॉज राजेश सर इज वेरी सीनियर टू मी, तो उनकी फर्म में मेरी फर्म इन्वॉल्व हुई थी, और उसके बाद हमारा मर्जर हुआ था। सो मैंने डी मर्ज करके अपनी पुरानी फर्म ले ली। मैं और राजेश सर हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे थे, और बैंक के असाइनमेंट, इंश्योरेंस कंपनी के असाइनमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर के असाइनमेंट, और बहुत सारे सीएजी के असाइनमेंट भी हमारे पास आ सकते थे, और हमने किए भी कई। बट जैसे ही मैंने 4.5 साल के बाद, 5 साल खत्म होने से पहले, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आप मर्जर में जाते हैं तो आपका नाम जो है, फर्म का नाम, आपकी जो फर्म है एज इट इज 5 साल के लिए स्टोर रहती है, उसे किसी को हम देंगे नहीं। 5 साल से पहले आप उसे कॉल करना चाहें तो वापस आपको मिल जाएगी। सो मैंने कहा मेरी फर्म एग्जिस्ट करती है 5 साल में, वो कहीं खत्म ना हो जाए, तो मैंने ले लिया। मैंने राजेश सर को बोला, मैं सर हम फिर मर्जर कर लेंगे 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद फिर मैं किसी के साथ बैठा तो हम दोनों भाइयों के आपस में ट्यूनिंग नहीं बनी, हमने मर्जर फिर नहीं किया। मैंने पार्टनरशिप फर्म से हमने मर्जर से वापस आके डीमर्जर किया, अगेन मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी, और राजेश सर की अभी भी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, अज्यूम करते हैं एक एग्जांपल की तरह। बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने जो नेटवर्किंग की जो गाइडलाइंस दी हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। मर्जर में हमें पता है कि मर्जर में हम अटैच फंक्शन कर सकते हैं। मर्जर में हमारी 5 फर्म्स हो, हमारी 10 फर्म्स हो, मर्जर करें। मर्जर में जो हमारी सबसे पुरानी चार्टर्ड फर्म है जिसके साथ हम मर्जर करना चाहते हैं, जितने भी हम 8-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके मर्जर कर रहे हैं, जो सबसे पुरानी फर्म है उस फर्म में सब के सब मर्ज हो जाते हैं, ताकि हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी एग्जिस्टेंस बहुत पुरानी डेट से आए, ओल्ड डेट से आए, एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट हो, हमारी एलिजिबिलिटी ज्यादा हो, वो हम बेनिफिट लेते हैं मर्जर। बट इन द केस ऑफ नेटवर्किंग इज समथिंग इज डिफरेंट, बिकॉज नेटवर्किंग में जो हमारी फर्म, जो हमारा नेटवर्क बनेगा, उसमें हमारी प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म, वो हमारी एज इट इज रहेगी हमारे पास, और उसमें हम अपने अटैच फंक्शन का काम कर सकते हैं। और नेटवर्किंग में क्या होगा, नेटवर्किंग में हमारी फर्म, जैसे मैं राजेश सर के साथ नेटवर्किंग करता हूं, तो राजेश सर के फर्म का इनिशियल और मेरे फर्म का इनिशियल, हम दोनों का इनिशियल मिलने के बाद एक नेटवर्क का नाम डिसाइड हो जाएगा। वो क्या होगा, वो अलायंस होगा या नेटवर्क होगा या लीडिंग फर्म के साथ होगा, वो मैं अभी गाइडलाइंस के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेटली वो चलेगा। और साथ में मेरे पास कुछ 8-10 क्वेश्चन है। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी राजेश सर से बात हो रही थी, तो मैंने सर को बोला कि सर 10 क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी हैं जो मुझे मेंबर के सामने रखने हैं, एंड डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। तो सभी मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, सो वन बाय वन, व्हेन आई विल आस्क द क्वेश्चंस, so 10 questions which I have already related to this networking, so I will ask and I am expecting the reply from your side, so that the understanding of the present member must be at the optimum level. ये अगर हम कम संख्या में भी आज ज्वाइन किए हैं, तो ये क्योंकि ये जो नया प्लेटफॉर्म आया नेटवर्किंग का, दैट इज अ वेरी न्यू, हॉट टॉपिक तो है ही है, बट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अभी भी राजेश सर, मैं थोड़े दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की बात है, तो मैं इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में देख रहा था कि टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हो गए, और टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट इवन यूडेन डिपार्टमेंट ने, जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो यूडेन डिपार्टमेंट है, यूडेन डिपार्टमेंट ने देखा है कि कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अटैच फंक्शन में कौन कौन से काम किए और उसके बदले यूडेन लगाया। तो उसमें सर्टिफिकेशन के, अटेस्टेशन के काम बहुत सारे हैं। जीएसटी ऑडिट 2017-18 में सर 6 लाख जीएसटी ऑडिट हुए पूरे भारत में, और वही 18-19 में हुए 12 लाख जीएसटी ऑडिट।
और 12 लाख यू डिडंट क्रिएट हुए, 12 लाख से थोड़े से ज्यादा होंगे क्योंकि कुछ गलती से क्रिएट कर दिया तो उसको विड्रॉ कर लिया गया, दोबारा फिर यू डिडंट क्रिएट कर दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और इनकम टैक्स में जो चीजें लेटेस्ट आई हैं, 10 करोड़ की लिमिट होगी, हालांकि लिमिट 1 करोड़ की है, बट वो कंडीशन है 5% वाली। उसके केसेस में कहीं ना कहीं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के मन में ये भी चल रहा है कि हमारा काम कम हो गया, हमारा जीएसटी 9C खत्म हो गया, ये सब चीजें खत्म होगी। वो एनीवे मैं जीएसटी और इनकम टैक्स पे नहीं जाऊंगा, बट यस व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट दिस नेटवर्किंग गाइडलाइंस, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कनेक्ट दोज अपॉर्चुनिटी दोज आर अवेलेबल फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। और नेटवर्किंग में आपको वो बेनिफिट आपको लेने चाहिए, बट उसको लेंगे कैसे? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अलायंस, नेटवर्क एंड नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी एंड द मर्जर डीमर्जर, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, किसके लिए वो सारी चीजें अवेलेबल है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी। और गाइडलाइंस को 3 शेप में इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से जो हमारे पास जो गाइडलाइंस आई हैं वो 3 शेप में आई हैं, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3। एनेक्सर 1 टोटली गाइडलाइंस की बात करता है रिलेटेड टू अलायंस, एनेक्सर 1 बात करता है, और एनेक्सर 2 जो है वो टोटली बात करता है नेटवर्किंग विद द फर्म, एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर नेटवर्किंग विद द लीडिंग फर्म की बात करता है। लीडिंग फर्म क्या होती है अभी हम बात करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने इस गाइडलाइंस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो नेमिंग के ऊपर है कि आप जब नेम अप्लाई करेंगे तो वो नेम अप्रूव होना चाहिए इंस्टीट्यूट की तरफ से, कमेटी की तरफ से, तो डेफिनेटली वो ही काम है। उसके अलावा देन वी हैव द रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस कि आपको रजिस्टर्ड करना है ये नेटवर्क चाहे अलायंस जो भी आप स्टार्ट करेंगे। देन प्रैक्टिस कैसे करनी है, कुछ पॉइंट मैंने एक आध पॉइंट मेंशन किया है बट उसको भी डिटेल में बात करते हैं। देन द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज एम्पैनलमेंट, कि एम्पैनलमेंट कैसे होगी। क्या सर हम नेटवर्किंग में अपने नेटवर्क को एम्पैनलमेंट करवा सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ? उसके ऊपर अभी हमारे रिस्पेक्टेड सेंट्रल काउंसिल मेंबर दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट एरिया कि उसकी रिकॉग्निशन गवर्नमेंट लेवल तक आ जाए, CAG उसको रिकॉग्नाइज कर दे, क्योंकि अभी वी आर रजिस्टर्ड विद द ICI एज अ नेटवर्क बट वी आर up to some level we are not recognized like in the eyes of CAG, in the eyes of PSU, in the eyes of other government department। तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ limitations हैं इस नेटवर्क की वजह से। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा if you are not getting any government assignment, if you are not getting any government work from any government department, so don't think about anything, any negative things in your mind, because we have so many other works in the industry, other works in the market which we can take the benefit of that with the help of this network। तो तभी मैं कह रहा हूँ ये नेटवर्क आज के टाइम पे जो इम्पोर्टेंस है, जो ये गाइडलाइंस आई हैं, जो वर्क किया है हमारे इंस्टीट्यूट ने और जो टीम सेंट्रल काउंसिल मेंबर की, सो आई ऑलवेज हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसको नेक्स्ट लेवल पे। अब मैं पुराने नेटवर्क की बात करूं, राजेश सर 2005 में नेटवर्क की गाइडलाइंस आई थी और 2005 में, और सर मैं 2008 का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने जून 2009 में वेस्ट दिल्ली के स्टडी सर्कल में लेक्चर दिया था नेटवर्किंग का। तो दैट वाज माय फर्स्ट सेशन, फर्स्ट लेक्चर ऑन द नेटवर्किंग टॉपिक। और नेटवर्किंग टॉपिक को सुनने वाले सर सभी के सभी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट आए थे। 90%, 95% आई वुड से सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क गाइडलाइंस। बट वहां पे राजेश सर अभी जो रिजल्ट आया, अभी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यही बोला गया है कि 2005 से लेके अभी तक जो नेटवर्क की गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं, सिर्फ 100 फर्म्स ने नेटवर्क को यूज किया, सिर्फ 100, गिनती की 100 ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने नेटवर्क का बेनिफिट लिया है। सो दैट इज व्हाई हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने इसको अपडेट किया, इसको डिजाइन किया, सो दैट इसको नेशनल लेवल पे नहीं, नॉट इन द डोमेस्टिक लेवल बट एट द इंटरनेशनल लेवल इसको उस हिसाब से डिजाइन किया गया ताकि हम इसको ग्लोबल लेवल पे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। उसके अलावा एम्पैनलमेंट के बाद देन वी हैव अनदर पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी नेटवर्क के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए देन व्हाट आर द रेमेडीज, कौन कौन सी ऐसी चीजें वहां पर आपको रिप्लाई, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें वहां पे क्या करना है। तो हमें उसके अलावा देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। नेटवर्क में 5 फर्में मिल गई, मान लीजिए हेमंत पावा जी की फर्म मिल गई, मेरी फर्म मिल गई, राजेश सर की फर्म मिल गई, कोहली साहब की फर्म मिल गई एंड धमीजा सर की फर्म मिल गई। 5 जनों की 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म मिलने के बाद किस फर्म की क्या अकाउंटेबिलिटी है, उस अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ।
और रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर इसको हम चेंज करना चाहें, इसमें ऑल्टर करना चाहें, मान लीजिए मैं नेटवर्क से बाहर जाना चाहता हूं और मेरे इंस्टेड ऑफ मी सम अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट वांट टू जॉइन द नेटवर्क ऑफ राजेश सर, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। अगर आप नेटवर्क से बाहर जाना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, दैट इज वेरी इजी, बस थोड़े से वो कंप्लायंसेस है, आपको एक फॉर्म देना, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, एक पेज के फॉर्म है, आपको अपनी फर्म की डिटेल देनी है, अपनी डिटेल देनी है, मेंबरशिप नंबर देना और अपनी कंसेंट देनी, दैट्स इट। एंड वी नो दैट वी हैव द एसएसपी पोर्टल, राइट, पिछले 2 सालों से जो काम एसएसपी पोर्टल पे हुआ है, आज एसएसपी पोर्टल की वजह से हमें इंस्टीट्यूट में भी जाने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे भी फेसलेस का काम शुरू हो गया। So that is a good opportunity because the professional, they are saving their time, they are sitting in the office and they are multiplying everything. Otherwise हम रास्ते में टाइम अपना वेस्ट करते थे, गाड़ी में जाने में, कन्वेंस में, पार्किंग में, बहुत सारे इश्यूज थे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे, सो दैट सभी मेंबर्स को ये पता चले कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्किंग के ऊपर, सो व्हाट आर द रिलेटेड पॉइंट्स जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन अभी सबके सामने रखता हूं। पहले मैं क्वेश्चंस बता देता हूं ताकि आपके माइंड में ये आ जाए कि इसको कंप्लीट सुनने के बाद आपके ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में चलेंगे जिससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं आंसर ढूंढने होंगे। हालांकि मेरी प्रेजेंटेशन जो मैं पीपीटी के बिना आया हूं, राजेश सर को मैंने बोला था विदाउट पीपीटी मैं डिस्कस करूंगा और वो सब चीजें चलेगी। सो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि इफ नेटवर्क इज नॉट रजिस्टर्ड with the ICI, then it has to comply with the code of ethics of the ICI। जितने भी नेटवर्किंग की गाइडलाइंस हैं या कोड ऑफ एथिक्स के कंप्लायंसेस हैं, सभी के सभी एप्लीकेबल हैं, आपको कंप्लायंसेस करने हैं, चाहे आपका नेटवर्क रजिस्टर्ड विद द ICI नहीं है। नहीं तो कई मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से गाइडलाइंस की जब बात की, उन्होंने बोला सिंह साहब इसको हम रजिस्टर्ड ही नहीं कराते, हमारे कंप्लायंसेस ही खत्म इंस्टीट्यूट के लिए। तो नहीं सर, ऑलरेडी मेंशन इन द गाइडलाइंस कि अगर आप इसको रजिस्टर्ड नहीं भी करवाते तो भी आपके लिए कंप्लायंसेस है, तो भी आपको इंस्टीट्यूट में माना जाएगा, डीम्ड किया जाएगा कि यस ये नेटवर्क है और ये रजिस्टर्ड है कंप्लायंसेस के हिसाब से, बट आपको करवाना तो है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लायंसेस जब मैं बात करूंगा। दूसरा, कैन नेटवर्क ऑफ द सीए फर्म अप्लाई फॉर द ऑडिट असाइनमेंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मुझे पता है कि मैं बिग 4 में एज ए पार्टनर के अप्लाई करूं तो मुझे बहुत समय लगेगा राजेश जी, क्योंकि मार्केट में अपनी इमेज बनाना, अपनी फर्म को अच्छे लेवल पे लेके जाना, फिर उसके बाद देन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द बिग चार्टर्ड फर्म कि वो हमें एज ए पार्टनर रख ले, हमारी फर्म को भी अपने साथ मर्ज कर ले। तो अपना पोटेंशियल बनाना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी फर्म को डेवलप करना पड़ता है। बट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हम छोटे छोटे 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर भी उस नेटवर्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क की गाइडलाइंस में हम अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं। मैंने मार्केट से एक असाइनमेंट लिया, सो मेरा ऑफिस जो है अशोक विहार में, राजेश सर का ऑफिस जो है वो ट्रांसमना में, और मैं कहता हूँ राजेश सर को, सर ये कोविड की वजह से ना माय स्टाफ मेंबर्स दे आर नॉट मूविंग आउटसाइड, या मान लेते हैं कि मेरा ऑफिस दिल्ली से बाहर है, राजेश सर का दिल्ली में है, और मैं आई एम सिटिंग इन लेट्स से पंजाब, और मेरे पास असाइनमेंट आया और मैं राजेश सर को बोलता हूँ कि सर दिल्ली का एक असाइनमेंट आया, तो आप उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करवा दीजिए, आप अपने स्टाफ मेंबर्स को बोलिए वो कंप्लीट करवा दीजिए। राजेश सर कहते हैं कोई बात नहीं भाई साहब, काम हो जाएगा आपका। और एक असाइनमेंट राजेश सर के पास था जो पंजाब का है, तो आई एम प्रैक्टिसिंग सपोज इन पंजाब, वो असाइनमेंट राजेश सर ने मुझे बोला कि सर आप इसको जो आप कंप्लीट करवा दीजिए, साइन तो राजेश सर को करने, और मेरे वाले असाइनमेंट में साइन मुझे करने, बट काम यस ऑफ कोर्स द अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, द अनदर प्रोफेशनल पर्सन उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज है और शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। जब हम नेटवर्क का पार्ट बनेंगे, हम 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर काम करेंगे, 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, then there is a objectivity, then there is a quality of this, the benefit of this network, we are sharing our knowledge with the other partner, other chartered accountant, right? चाहे हम पार्टनर नहीं है, but we are part of the network. We are not partner, we will not count it as a partner, but we will count it as a part of the network. तो ये भी एक बेनिफिट है। तो यस, ऑडिट असाइनमेंट की बात करेंगे, क्या नेटवर्क में ऑडिट असाइनमेंट आ सकता है? मैं बोलता हूँ कि ऑडिट असाइनमेंट इज अटेस्ट फंक्शन, और अटेस्ट फंक्शन को अभी नेटवर्क से बाहर रखा गया।
अभी यहाँ पे नॉन अटैच फंक्शन को कवर किया गया, सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को कवर किया गया। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड नेटवर्किंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले से रिस्पेक्टिव मेंबर से ना आई हैव मेंशन वन पॉइंट रिलेटेड टू द मर्जर कि 5 साल तक का वो मर्जर है और 5 साल से पहले बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी फर्म को वापस ले ले, डीमर्जर कर लें, ताकि हमारी फर्म की एग्जिस्टेंस रहे। क्योंकि मर्जर होने के 5 साल के बाद फिर हमारी जो फर्म थी, चाहे मान लीजिए मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी जगजीत सिंह एंड एसोसिएट, और मैंने मर्जर किया सर के साथ, राजेश सर के साथ, 5 साल बीत गए। अब सर की फर्म पुरानी थी, सर की फर्म में मर्जर किया था, 5 साल बीत गए। आज मैं 5 साल बीतने के बाद अगर डीमर्जर करता हूं और मैं इंस्टीट्यूट को बोलता हूं कि सर मेरी पुरानी फर्म मुझे वापस दे दीजिए, जगजीत सिंह एंड एसोसिएट, तो इंस्टीट्यूट कहता है सिंह साहब आपने 5 साल से पहले अपने आप को डीमर्जर करवाना था और अपनी फर्म को रिकॉल करवाना था इंस्टीट्यूट से, तब आपको वो फर्म मिलती। 5 साल के बाद तो आपको मिलेगी नहीं। अब मैं 5 साल के बाद जब राजेश सर की फर्म से डीमर्ज हुआ, डीमर्जर के बाद मैंने फर्म के लिए अप्लाई किया और वो फर्म मुझे मिली नहीं, एंड आई हैव टू रजिस्टर द न्यू फर्म। पहले मुझे उसका नेम के लिए अप्रूवल के लिए डालना है। फिर मेरी फर्म मान लीजिए जगजीत सिंह एंड एसोसिएट जो थी वो लुधियाना में या पंजाब में किसी ने ले ली, पिक कर ली, क्योंकि नेम अवेलेबल हो गया 5 साल के बाद। मेरे को मिली बाद में सिंह एंड एसोसिएट। अब मैंने जो 5 साल काम करके जो जगजीत सिंह एंड एसोसिएट का जो एक इमेज बनाई थी मार्केट में, बोर्ड बनाए थे, मान लीजिए मेरी फर्म की वेबसाइट भी बनी हुई थी, वो सब खत्म हो गई एग्जिस्टेंस। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, यू नो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। बट हमें थोड़ा सा ना बड़ा सोचना चाहिए। जब मैंने 2009 में जब नेटवर्किंग के ऊपर लेक्चर दिया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ओपन माइंडेड पर्सन वाला, कि हमें अपने आप को ओपन माइंडेड पर्सन बनना। आज भी मेरे पास कई सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात होती है, कमला नगर में ऑफिस है, पहाड़गंज में ऑफिस है, आज भी वो प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं। वो छोटा छोटा काम, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है 49A भरना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है बैलेंस शीट को बना के कोई और दे रहा है। कौन और दे रहा है? आपके असिस्टेंट दे रहे हैं, आपके आर्टिकल्स दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो काम सीखेंगे ना सर। वो भी तो हमारे पास इंस्टीट्यूट कहता है आप उनको गाइड करो, उनको काम सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो। बैलेंस शीट उससे बनवाओ, फाइनल आप करें, ओवरऑल आप चेक करें, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्ट, सेक्शन, हर एक चीज आप देखें उसमें, राइट। सो जब हम उन चीजों को फॉलो करते हैं तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट कि उसको फाइनलाइजेशन करना। अगर मैं 15 साल के बाद भी अगर मैं 49A फॉर्म भर रहा हूं, so what is the, you know, the value addition for me running as a, you know, the running this my proprietorship firm? So if I'm expecting the big assignment from the market, either we have the big 4, or we have top 20 chartered firm, or we have the merger with the number of chartered firm, or we have the network, the big network, तभी काम होगा। आज आपके पास मुंबई से कोई असाइनमेंट आ जाए और आपके नेटवर्क में कोई मुंबई का चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही नहीं, सो हम असाइनमेंट को क्या बोलेंगे? क्लाइंट कहता है जी मैं आपको इस काम के 1 लाख रुपए दूंगा, 15 दिन का काम है, तो राजेश सर मैं 1 लाख रुपए के लिए 15 दिन के लिए मुंबई तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए नुकसान का केस है। बट मान लीजिए मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इज देयर हु इज इन माय नेटवर्क एक्चुअली, या मैं उनके नेटवर्क में जुड़ा हूं, तो मैं मिस्टर एक्स से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर ये काम को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। उनके आने जाने का खर्चा, फ्लाइट की टिकट का खर्चा 0, एंड ही इज वर्किंग ऑन माय बिहाफ, और उन्होंने उस काम को कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद हमारे कोड ऑफ एथिक्स के भी क्लॉज कहते हैं कि वी कैन शेयर द फीस विद द अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज परमिसेबल। और मैं उनके साथ कुछ परसेंटेज फीस बेसिस पे जो उनके चार्जेस लगे, जो उनकी कॉस्ट है, मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। आनंद दुआ जी आ गए। सर आनंद दुआ जी नमस्कार सर, आपका वीडियो स्टार्ट नहीं है तो वेलकम सर। अब वहां पर ये जो इश्यूज हैं, इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेटवर्क की वजह से वो बेनिफिट मिलते हैं, बट ऑडिट असाइनमेंट टेस्ट फंक्शन नेटवर्क में नहीं आएगा। नॉन अटैच फंक्शन के लिए नेटवर्क बनाया गया, और नॉन अटैच फंक्शन के भी बहुत सारे काम है। मैं सोच रहा था राजेश सर कि मैं एक लिस्ट निकालूं नॉन अटैच फंक्शन की, बट ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। बट अटैच फंक्शन की कौन सी लिस्ट है? जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन नहीं होते वो नॉन अटैच फंक्शन में कवर हो गया, डिफरेंस हो गया। उसके बाद आ गया रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। एक यहां पे थोड़ा सा रोटेशन ऑफ द ऑडिटर है, क्योंकि नेटवर्किंग के कुछ प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं। जो रोटेशन ऑफ द ऑडिटर के जो गाइडलाइंस हैं, जो कंप्लायंसेस हैं, जो रूल्स हैं, वो भी एप्लीकेबल होंगे इस नेटवर्क में भी।
अगर आप एक नेटवर्क का पार्ट बन गए हैं, एक नेटवर्क में एज ए फर्म उसमें इन्वॉल्व हो गए, नेटवर्क का पार्ट बन गए, देन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अगर किसी कंपनी में ऑडिटर थी तो वो उसका टाइम खत्म हो गया, वो रोटेट होना है, दूसरे को आना है। तो अगर आप उसी नेटवर्क में हैं तो आपको वो फर्म का ऑडिटर नहीं बन सकते आप, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। सो जितनी भी चार्टर्ड फर्म उस नेटवर्क का पार्ट है, वहां पे रोटेशन ऑफ द ऑडिटर के केस में you cannot be appointed as auditor of that company because you are working with the related party. तो राजेश जी हैं, मैं हूं, या दुआ सर हैं, हम तीनों एक नेटवर्क में काम करते हैं। राजेश सर ने उस कंपनी में काम किया, पीएसयू में काम किया, ऑडिटर थे। अब रोटेशन ऑफ द ऑडिटर होना है तो राजेश सर को अगर सीट को वैकेंट करना है तो सेम सीट पे ना तो मैं बैठ सकता हूं ना आनंद दुआ जी बैठ सकते हैं, रोटेशन के भी वो लग जाए। नेक्स्ट, can one firm of the network work as an internal auditor and another firm can be appointed as a statutory auditor? ये भी पॉसिबल नहीं है सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर राजेश सर उस कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हैं या स्टैट ऑडिटर हैं, then I cannot be appointed as an internal auditor because there is a self interest, there is a self interest, इंटीग्रिटी खत्म। राजेश सर ने जो काम किया, राइट, कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन हो सकती है मेरे लिए कि अपने भाई हैं, बड़े भाई हैं, ध्यान रखना है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। If you are the part of that network and one chartered accountant working as a statutory auditor, then another chartered accountant of the same network cannot be appointed as an internal auditor or stat auditor, vice versa, जो भी उसमें हो। एक ये बहुत बड़ा इशू। तो 5 इश्यूज मैंने डिस्कस करनी है। नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर 1, अनरजिस्टर्ड है तो भी सर रूल तो एप्लीकेबल है। नेटवर्क ऑफ द सीए फर्म अप्लाई फॉर द ऑडिट असाइनमेंट, मैं बोलता हूं कि नेटवर्क में ऑडिट असाइनमेंट नहीं है, अटेस्ट फंक्शन नहीं है, नॉन अटेस्ट फंक्शन के लिए नेटवर्क है। और जो अटेस्ट फंक्शन आपने करना है वो मैं अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म में कर लूंगा, जगजीत सिंह एंड एसोसिएट में कर लूंगा। राजेश सर के साथ जो मैंने नेटवर्क ज्वाइन किया वहां पे मैं नॉन अटेस्ट फंक्शन के लिए उसको बेनिफिट करूंगा। मर्जर और इसमें नेटवर्किंग में डिफरेंस वो भी मोटा मोटा मैंने बताया, भी थोड़ा सा और आगे चलेंगे। रोटेशन की बात की मैंने, 4th पॉइंट वाज द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर एंड द 5th पॉइंट इंटरनल ऑडिटर और स्टार्ट ऑडिटर, वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैन अ फर्म ऑफ ए वन नेटवर्क join the network of the join the network another network at the same time? मैं राजेश सर के नेटवर्क के साथ जुड़ गया और आनंद दुआ जी का एक नेटवर्क अलग चल रहा है और मैं चाहता हूं कि यार मैं दोनों नेटवर्क का बेनिफिट ले लूं। सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ दिस गाइडलाइन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कि अगर सिंह साहब आपने एक प्रोफेशनल फर्म का, एक चार्टर्ड फर्म का नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया, राजेश जी के नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया, एट द सेम टाइम यू कैनॉट ज्वाइन द नेटवर्क ऑफ द अदर चार्टर्ड फर्म। That is not permissible. But if I want to join the network of Anand Dua ji, then first I have to leave the network of Rajesh Agarwal sir. ये limitations हैं, plus minus हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। So everything is mentioned in this guidelines and the guidelines are so simple. वहाँ पे इंटरप्रिटेशन का भी खेल नहीं है सर राजेश सर, बड़ी सिंपल है, पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। और उसका पीडीएफ मैं राजेश सर को भेज दूंगा क्योंकि मैं विदाउट पीपीटी हूँ। वो पीडीएफ जो है राजेश सर फिर सब मेंबर्स को जिन्होंने ज्वाइन किया उनको, और जब सर वीडियो भेजते हैं तो उसके साथ भी सबको हेल्प मिलेगी। 7th पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म्स। अभी हमारे पास नई अपॉर्चुनिटी आ गई कि हम एमडीबी बना सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म। अब मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म में हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी है, हमारे पास आईसीडब्ल्यू है, हमारे पास एडवोकेट है। चलो ठीक है, अभी एलएलबी के केस में हम उनके जो काउंसिल मेंबर अभी तक अप्रूवल है वो प्रोसेसिंग में, देखते हैं वो भी हो जाएगा। उसके अलावा इंजीनियर है, एक्चुरियल है, बहुत सारी चीजें। अब उसमें डिफरेंस क्या है? अब मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म में जाते हैं तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो परसेंटेज है, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग की बोलो चाहे नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बोले, वहां पे मेन जो परसेंटेज है वो वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए मैक्सिमम।
अगर 3 प्रोफेशनल हैं, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 1 ICW है, ठीक है चलेगा। मेजोरिटी जो वर्ड वहां पे लिखा गया है, दैट वर्ड इज मेजोरिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां पे होना चाहिए MD, इसमें MDF में, मल्टी डिसिप्लिनरी जो फॉर्म्स है, पार्टनरशिप फॉर्म, MDP जो है मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसको मैं नेटवर्क से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, सो नेटवर्क एक रजिस्टर्ड नेटवर्क है और मल्टी डिसिप्लिनरी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म है, वहां पे डिफरेंस है थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन अलायंस एंड नेटवर्क। एक छोटा सा चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा कि अलायंस में क्या डेफिनेशन है, नेटवर्क में क्या डेफिनेशन है। ये 3 जो स्टेप है ना, कि आज अगर मान लीजिए मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड के साथ पार्टनरशिप करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे धोखा ना दे दे, तो मैं इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप, एक रिटर्न एग्रीमेंट की बजाय मैं उनको बोलता हूँ सर एक हम काम करते हैं, एक अलायंस बनाते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं। उस गठबंधन में हम 2 साल के लिए चलते हैं, 1 साल के लिए चलते हैं, ताकि हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती जाए, हमारी एक बाउंडिंग बनती जाए। So that is why the institute has wrote this, the first level of this network, that is called alliance. अगर आपका किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरे प्रोफेशनल पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं है और बट आप करना चाहते हैं, अपनी फर्म को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, देन आप अलायंस को पहले आप यूटिलाइज कीजिए। द फर्स्ट वन इज अलायंस। अगर गठबंधन के बाद, अलायंस के बाद आपकी बाउंडिंग बढ़ जाती है, देन यू कैन थिंक अबाउट द नेटवर्क, सेकेंड स्टेप। और अगर सेकेंड स्टेप को ज्वाइन करने के बाद आपकी बाउंडिंग और ज्यादा बन जाती है, आपको विश्वास हो जाता है, देन यू कैन थिंक अबाउट द नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म। मान लीजिए मैंने पहले राजेश सर के साथ अलायंस ज्वाइन किया। मैंने कहा सर राजेश सर, मैं वेरी जूनियर टू यू, के सर मैं बहुत यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, चलो ठीक है, मेरे पास 11 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास 30 साल का 25 साल का, जितना आपका एक्सपीरियंस मेरे से डबल है सर। मेरे को किसी ने बोला कि नहीं विश्वास मत करना जी, किसी पे विश्वास मत करना, धोखा हो जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म में धोखा हो जाता है, क्योंकि सब चीजें मार्केट में ही है सर। अच्छा बोलने वाले भी है, नेगेटिव बोलने वाले भी, पॉजिटिव बोलने वाले भी। मैंने सर के साथ अलायंस ज्वाइन किया, एक अलायंस क्रिएट किया हम दोनों ने मिलकर, और उस अलायंस को ज्वाइन किया और 2 साल हो गए अलायंस। और राजेश सर के साथ हमारा बैठना उठना खाना पीना सब चल रहा है, बहुत एकदम बड़े भाई छोटे भाई की तरह चल रहा है। एक दिन मैंने राजेश सर को बोला, सर हमारा आपस में बहुत अच्छा प्यार बन गया सर, क्यों ना हम इस अलायंस को कन्वर्ट कर दें सर नेटवर्क में। राजेश सर कहते कर लो सर, आप कभी भी कर लो, मुझे कोई इशू नहीं। क्योंकि राजेश सर इज वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, भगवान को मानने वाले। जब भी बात होती है, बात राधे राधे से शुरू होती है, राइट। वो दैट इज द क्वालिटी ऑफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ राजेश सर, कि वो पता होता है कि दिल के जो साफ होते हैं ना, भगवान का नाम जुबान पे हमेशा रहता है। राजेश सर कहते हैं सर आपके ऊपर है, आप चाहें तो नेटवर्क कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो नेटवर्क विद लीडिंग फर्म कर लें, राइट। अब मैंने कहा नहीं, विश्वास को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। मैंने सर के साथ नेटवर्क ज्वाइन किया। नेटवर्क ज्वाइन करने के बाद अब सर की फर्म जो है पुरानी है, मेरी फर्म जो है लेटेस्ट है, मेरे पास एक्सपीरियंस 12 साल का है, सर की फर्म एक्सपीरियंस 25 साल का है। मैं बोलता सर आपने तो बहुत साथ दिया सर मैं ही थोड़ा सा वैसा सोच रहा था, थोड़ा नेगेटिव सोच रहा था, सर आपकी फर्म के साथ इस नेटवर्क को लीड करते हैं। वहां पर सर की फर्म का नाम आ गया लीडिंग नेटवर्क, विद द फर्म नेम ऑफ राजेश अग्रवाल सर। अब यहाँ पे जो ऑडिट जो हम अप्लाई, यहाँ पे जो हम नॉन अटैच फंक्शन अप्लाई करेंगे, वहां पे राजेश सर की फर्म का नाम जाएगा और साथ में वर्ड जाएगा एंड नेटवर्क लीडिंग फर्म। ये चीजें अब यहाँ पे गाइडलाइंस में आएंगी जो मैं अभी आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेरे क्वेश्चन थे, जो मैंने राजेश सर को बोला। और अभी देखिए 40 मिनट्स हो चुके हैं। उसके बाद एक आगे बात चलते हैं, इज कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल टू द अलायंस नेटवर्क और नेटवर्क विद द लीडिंग? ऑब्वियसली सर, आप रजिस्टर्ड हैं तो भी, अनरजिस्टर्ड हैं तो भी अप्लाई तो लगेगा, क्योंकि जब रोटेशन ऑफ द ऑडिटर आ गया, कोड ऑफ एथिक्स भी तो आएगा सर। जब कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शंस लग रहे हैं, तो ये भी लगेगा। कंपनी एक्ट 2013 का एक सेक्शन है, मैं अभी लिखा था, मैं आपको बताता हूं, जहां पर आप किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी गाइडलाइंस के साथ उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रावेंशन होती है, तो सर आपको वो सब चीजें, पेनल्टी वगैरह वो सब चीजें हैं आपके पास, राइट, वो आपको लगेगा।
and that section was 144 जो कंपनी 2013 का, जहाँ पे 1 ईयर का वो 1 लाख रुपीस की पेनल्टी और 1 ईयर का उसमें प्रॉब्लम वो रहेगी, राइट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी होगा, उसमें गिल्टी करार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते, एक राजेश सर एक नई चीज आ रही है, आई थिंक द वर्ड सीए कनेक्ट या कनेक्ट सीए करके एक आ रही है, एक नई चीज थोड़े दिनों में इंस्टीट्यूट उसके ऊपर काम करे, कनेक्ट सीए करके आ रही है शायद। जी जी जी, अभी उस पे ऊपर सेंट्रल काउंसिल मेंबर से बात चल रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द एग्जैक्ट वर्ड इज कनेक्ट सीए। उसमें क्या आ रहा है कि उसमें हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में कोई 2 एरिया उसमें मेंशन करें जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, और वो जब वो चीजें मेंशन हो जाएंगी इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर, और इंस्टीट्यूट के पोर्टल से जब हम एम्पैनलमेंट में जाएंगे, देन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन सी कि राजेश सर का 2 एरिया में कहां पर एक्सपर्टाइजेशन है और सिंह साहब का कहां है और दुआ सर का कहां है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस यू विल गेट द एडवांटेज। ये भी इसमें एक चीज आ रही है नई, which is again I would say the value addition for the practicing chartered accountant. Now the next one, our alliance network and networking guidelines leading firm recognized by the government of India, government department like RBI, CAG। अब इसके ऊपर मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि इसके ऊपर हमारे रेस्पेक्टेड सेंट्रल काउंसिल मेंबर दे आर वर्किंग वेरी हार्ड कि इसको किसी तरीके से इसको करके बात करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल जाए, इसको रिकॉग्निशन मिल जाए। अभी तो ये रजिस्टर्ड, वो कहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहता है ये तो आपके पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड विद आईसीआई है, दैट इज नॉट रजिस्टर्ड एट द द पब्लिक लेवल पे, कहीं पब्लिक डोमेन के कहीं डिपार्टमेंट में है कि आरबीआई के साथ जैसे हम पैनलमेंट में जाते हैं तो आरबीआई हम अलॉट होते हैं, तो वो अप्रूवल अगर मिल जाएगी, इसके ऊपर काम चल रहा है और डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो अप्रूवल मिलेगी, वो टाइम लगेगा, पर जब हम इसमें जुड़ेंगे और वो चीज अपॉर्चुनिटी मिलेगी, then we can multiply the network, the benefit of this network. I think yes, now the 2-3 more points. So what are the non-attached function, वो मैं अभी छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं 13 पे, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म, वो भी मैंने बोल दिया वर्सेस नेटवर्क। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि जो क्रेडिट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द टास्क है, जहाँ पे मैंने बोला कि लीडिंग फर्म में राजेश सर के फर्म का नाम आ गया और मैंने उस नेटवर्क को ज्वाइन किया, नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म। अब सर जो एक्सपीरियंस होगा ना, जो साइनिंग अथॉरिटी रहेंगे सर राजेश सर आप जी, वहां से जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, मेरा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो नेटवर्किंग के साथ कहीं पर प्लस है और कहीं पर माइनस है, कहीं पर कांस्टेंट है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर नेटवर्क का बेनिफिट हम ले सकते हैं। बट हमें, मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने 2009 में बोला था, ओपन माइंडेड पर्सन सर। प्रोप्राइटरशिप के साथ ना तो कोई बड़ा है ना बढ़ेगा कभी भी। जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तरक्की की है उन्होंने पार्टनरशिप फर्म से की है, मर्जर से की है, एलएलपी से की है। आज अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म लेके किसी जापानीज कंपनी को बोलता हूं, उनको अपनी फर्म का प्रोफाइल देता हूं, विल दे गिव द असाइनमेंट? द बिग नो सर, क्योंकि वो बोलेंगे सर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, बट यू डोंट हैव द ग्रुप ऑफ ए प्रोफेशनल, टीम ऑफ द प्रोफेशनल आपके पास नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस जरूर है। तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन हमें प्रॉब्लम करती है। बट अगर कोई हम मर्जर में जाते हैं, हम एलएलपी बनाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी चार्टर्ड फर्म एलएलपी में दिखती है, तो डेफिनेटली सर उसका एक बेनिफिट मिलता है। सो नाउ हम मूव करते हैं गाइडलाइंस के ऊपर, ये क्या क्या गाइडलाइंस है। अभी मैंने मोटा मोटा बता दिया एंड 45 मिनट्स इज ऑलरेडी ओवर। राजेश सर आप मुझे बता देना जितना टाइम आप कहेंगे। प्लीज 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 कैरी ऑन। अभी कोई सर। क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर दूं, मैं पहले भी रिक्वेस्ट करना भूल गया कि जगजीत जी का बहुत अच्छा कंट्रोल है कोड ऑफ इथिक्स पे भी। ही इज आल्सो ए वंडरफुल स्पीकर ऑन कोड ऑफ इथिक्स। यदि किसी भी मेंबर को कोई कोड ऑफ इथिक्स से भी कोई रिलेटेड क्वेरीज है तो वो क्वेश्चन एंड आंसर में बॉक्स में उसको भेज सकता है, सर उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू राजेश सर। Then I'm waiting for the question and answer. जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, so definitely that is my responsibility to answer those questions, sir. सही है सर, स्टार्ट करते हैं। सो मैंने बोला 2005 में गाइडलाइंस आई, उसके बाद फिर वो जो 2011 में इसको सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने रिवाइज किया, एंड नाउ अब जो रिवीजन हो रहा है, अब जो अभी रिसेंटली जो रिवीजन हुआ है, उस रिवीजन के बाद ये गाइडलाइंस सामने आई है।
जिसको गाइडलाइंस ऑफ द नेटवर्किंग 2021 बोलते हैं। हमारी चार्टर्ड फर्म जो है या तो इंडिविजुअल फर्म्स में काम कर रही है या सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, एक पॉइंट मेरा रह गया, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा भाई या बहन अपने खुद के इंडिविजुअल नेम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूँ ये जगजीत सिंह जैक्स के नाम से कर रहा हूँ, तो मैं उस नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकता। मुझे अपने इंडिविजुअल नेम की बजाय उसको फर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जगजीत सिंह एंड एसोसिएट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फर्म में कन्वर्ट होने के बाद देन आई कैन बी अपॉइंटेड एज ए द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। ये पॉइंट मेरे से छूट गया था, मैंने मेंशन कर दिया। सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल नेम, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड मर्जर ऑफ टू फर्म्स एंड द नेटवर्क फर्म, ये सब चीजें। अब आगे चलते हैं नेटवर्क वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। In order to enable the Indian chartered firm to develop the sound network of the firm, so institute ने ये सारे steps लिए और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं। पहली सबसे पहली मीटिंग हुई 396 जो हुई, एंड दैट मीटिंग वो जो हुई सितंबर अक्टूबर 2020 में, यानी कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर में द काउंसिल एट इट्स 396th meeting held in September-October 2020 decided to conduct outreach programs so that the view of the member be heard, collated and placed before the council for approving the revised guidelines. ये सितंबर, अगस्त और सितंबर 2000 अक्टूबर में ये चीजें हुई ताकि गाइडलाइंस को अप्रूव किया जाए। उसके बाद एक नेक्स्ट मीटिंग हुई 397 और एक लास्ट हुई 398 जो हुई वो हुई 10th फरवरी 2021, जहां से ये स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इसको 9th फरवरी 2021 से इस गाइडलाइंस को अप्रूव कर दिया गया। इसमें 3 चीजें मैंने बोली, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 एंड एनेक्सर 3, वो भी उसमें था। उसके बाद एसएसपी पोर्टल, द बिग रोल ऑफ दैट एसएसपी पोर्टल एंड व्हाट इज मेंशन्ड इन दैट पॉइंट नंबर 1.10 में लिखा हुआ है, द काउंसिल डिसाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस बी रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ द अबव एंड ब्रॉट इनटू द फोर्स फ्रॉम 9th फरवरी 2021। सो 9th फरवरी 2021 वाज द डेट जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई, एंड एन एप्रोप्रिएट इकोसिस्टम बी डेवलप्ड in the self-service portal. That is why we call the SSP portal, self-service portal. No need of the other person. आप self-service ले सकते हैं for registration and regulation of the alliance. पहला point, network. दूसरा point, lead firm in the network model. So 3 मॉडल हमारे पास हैं, alliance और वो। अब हम इसको एक छोटी सी उसमें चीजें लिखी हुई हैं कि कॉमन फीचर्स हैं इंडियन चार्टर्ड फर्म के। अगर हम ये सुन लेंगे एक बारी तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। कॉमन प्रॉब्लम, द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड फर्म इन इंडिया हैव जनरली डन वेल, बहुत अच्छा चल रहा है सर, ये गाइडलाइंस में लिखा है। साथ में क्या लिखा है, द कॉमन फीचर्स नोटिस विद द इंडियन चार्टर्ड प्रोफेशनल्स आर, नंबर 1, मेजॉरिटी सीए फर्म्स आर स्मॉल साइज फर्म। मैंने आपको पहले ही बोला मैक्सिमम चार्टर्ड फर्म आर द प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, दैट वाज द वेरी फर्स्ट कॉमन पॉइंट। Large number of firms have confined practice to the audit and taxation. आज भी हमारी अगर किसी सीए से बात होती है, कहते हैं यार पार्टनरशिप कर लेते हैं, बैंक ऑडिट आ जाएगा, ये ऑडिट आ जाएगा, वो ऑडिट आ जाएगा। हम अदर देन ऑडिट के बारे में सोच ही नहीं पाते। मैं आपको बोलूंगा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो सर्विस है उसके ऊपर काम करें तो हमारे नॉन अटैच फंक्शन बहुत सारे हैं। मैं कई चार्टर्ड फर्म के में जाता हूं, वहां पर सीए साहब के बैक साइड पे लिखा होता है कंसल्टेंसी फीस 2500, कंसल्टेंसी चार्जेस 3000, कंसल्टेंसी चार्जेस 5000। चाहे उनके पास वो क्लाइंट उतना पेमेंट नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी की भी इंपॉर्टेंस है, वो सर्विस की भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी फर्म हैव ऑडिट अलॉटेड थ्रू द आईसीआई पीडीसी एम्पैनलमेंट प्रोसेस। हमें पता है कि हमारा एमएफई फॉर्म जो जाता है वहीं से हमें अलॉटमेंट मिलती है, तो कई ऑडिट हमें वहां से मिलते हैं। Members have attached with their firm name and don't want to go for the merger. ये सबसे बड़ा इशू है। अगर हम मर्जर के लिए, नेटवर्किंग के लिए अपनी फर्म जिसमें जो नाम है, जैसे जगजीत सिंह एंड एसोसिएट, अगर मैं अपने नाम के साथ बहुत अटैच हूं, नहीं मेरे मम्मी पापा ने नाम बहुत प्यार से रखा था, मैं इसी फर्म के इसी नाम से फर्म चलाऊंगा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं ये नहीं हो सकता। So my humble request to all the participants, to all the respected members, those have joined Archery,
कि जब तक हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे ना सर, ये प्रोप्राइटरशिप वाला लेवल नहीं छोड़ेंगे, we cannot take the benefit of this network guidelines, we cannot take the benefit of this merger, we cannot take the benefit of that management consultancy service, we cannot take the benefit of that multidisciplinary partnership. ये चार जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट ने मीडियोकर चार्टर्ड फर्म, स्मॉल चार्टर्ड फर्म्स के लिए जो क्रिएट किए हैं, इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ दिस गाइडलाइंस द अवेलेबल द फ्रेम बाय द ICI, सो हमें ओपन माइंडेड पर्सन बनना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट सर. आगे चलो. व्हेन क्लाइंट ग्रोथ बिगर दे टेंड टू स्विच ओवर द लार्जर फर्म. ये ऐसा इशू है. मैं अभी कल भी एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको मैंने बोला, मैंने कहा बेटा first stage से when you qualified you cannot start your practice, that is a very very difficult, but if you are looking for the practice I would say कि किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म को ज्वाइन करो, किसी ग्रुप को ज्वाइन करो, एक्सपीरियंस लो, वहां से बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करो. बट प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करके क्या होता है कि मैंने अगर किसी ए एंड कंपनी को गाइडेंस दी और वो कंपनी की टर्नओवर 5 लाख थी, अगले साल 10 लाख होगी, तीसरे साल 50 लाख होगी, चौथे साल 2 करोड़ होगी, करते करते 50 करोड़ होगी, वो मुझे छोड़ देगा 5 साल बाद. क्लाइंट तो ग्रो कर रहा है हमारी एडवाइस से, बट हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं? और 5 साल बाद जब उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, वो बोलेंगे अब सिंह साहब मेरी कंपनी के कंप्लायंसेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है. सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट, बट वो अपॉर्चुनिटी आज भी हमारे साथ स्टैंड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप नहीं कर रहे. अगर आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को पार्टनरशिप, मर्जर, उसमें जो मैंने आपको बताया जो मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप है, फर्म है, और उसके अलावा जो ये नेटवर्क वाला है, इसमें अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको डेवलप नहीं करेंगे, तो हमारा पुराना क्लाइंट जो हमारे साथ 10 साल से जुड़ा हुआ है, जिसकी टर्नओवर आज बहुत अच्छी है, वो बात अलग है, विश्वास की वजह से भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ, बट कहीं ना कहीं अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कि हमारे कंप्लायंसेस, हम उन कंप्लायंसेस को नहीं देख रहे, आपको अपनी फर्म को बढ़ाना पड़ेगा. एंड द नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको प्रोफेशनल की टीम बनानी पड़ेगी, देन वो क्लाइंट भी आपके पास रहेगा एंड द अमाउंट ऑफ दैट फीस यू कैन एनहांस. क्योंकि कई तो क्लाइंट देखते हैं कि आपका खर्चा क्या है, सिंह साहब आपकी फर्म का कोई तो खर्चा ही नहीं है, फ्लैट आपका है, रेंट आपका जाता नहीं है, 2 आर्टिकल आपने रखे हैं, 2-2 हजार रुपये आप उनको देते हैं, आपका कोई खर्चा नहीं है, भगवान का दिवा सब कुछ है. सर इतनी फीस क्यों मांगते हो आप? कहाँ लेके जाने इतने पैसे? वो ऐसी बातें करते हैं. बट मैं ये कहता हूँ सर, जो यहाँ माइंड में जो चीजें भरी हुई है ना, वो 2400-2500 पेजों की जो मोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज. हम 2 चीजें बिल्ड करते हैं सर, मैंने कई बार बोला है सर प्लेटफॉर्म पे, 2 चीजें बिल्ड करते हैं. एक द टाइम, प्रोफेशनल का टाइम इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरी सेकंड थिंग इज द नॉलेज. हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर. हमारे पास 2 ही चीजें हैं बेचने के लिए. वन इज द टाइम जो हम देते हैं. आज अगर मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये अगर मैं क्लाइंट के साथ बैठा होता तो 10,000 का क्लाइंट इन कैश हो सकता था, 50,000 का क्लाइंट इन कैश हो सकता है. दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम कई बार बोलते हैं. तो 2 चीजें हमारे पास, उन 2 चीजों को बिल्ड करते हैं. बट अपने प्लेटफॉर्म को अगर बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, सो हम बड़े चार्टर्ड, बड़े क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे. बड़े क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे, सो प्रोप्राइटरशिप फर्म सब डेवलप होगी ना सर, आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्लाइंट भी बढ़ेगा, तो फिर वो आपकी फर्म को नहीं छोड़ेगा. फिर वो बोलेगा जैसे हमारी टर्नओवर बढ़ी है, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब का भी ऑफिस बड़ा है, ये आज भी हमारी बड़ी कंपनी के कंप्लायंसेस कर सकते हैं. स्टार्टिंग में प्रोप्राइटरशिप में सेबी गाइडलाइंस थोड़ी लगती हैं, बट जब वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, उसके ऊपर सेबी गाइडलाइंस लगनी शुरू हो गई, तब वो देखेगा कि सिंह साहब की फर्म आज सेबी गाइडलाइंस हमारी कंप्लायंसेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अगर कर सकते हैं, इनकी फर्म भी बड़ी हो गई है, तो फिर तो क्लाइंट मेरे साथ नहीं तो भाग जाएगा. आगे चलते हैं. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट, firm that have the venture into the newer area of practice have found success and have been able to scale up. आज सर अभी राजेश सर सुबह मेरी 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हुई. Both the chartered accountants are newly qualified chartered accountant. Just 3 years back they have completed their chartered accountancy, and what they are doing sir, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, with the help of this platform. सभी के पास मेरा मैसेज जा रहा है सर, वो फोरेंसिक में काम करते हैं सर. हम में से कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर 3B भी भरते हैं, GSTR 1 भी भरते हैं. मैं बोलता हूँ सर दैट वर्क इज नॉट एक्चुअली आवर वर्क. हमें बड़ा करना है सर. बड़ा करने के लिए हमें अपने जूनियर्स को वो काम देना है, हमें नेक्स्ट लेवल पे काम सोचना है. मैंने एक चीज सोची थी कि 40 साल के बाद मैं काम नहीं करूंगा, मैं बैठ के मैनेजमेंट करूंगा. और पूरे 40 साल सर मेरे कंप्लीट हुए जब एज के,
तो मैंने फिर मैनेजमेंट शुरू कर दिया। अब मैं ऑफिस में काम नहीं करता, बट बच्चों के किए हुए काम को चेक करता हूँ, फिर उनको बोलता हूँ डीएससी मेरे सामने लगाओ, ओटीपी मेरे सामने लगाओ, क्रॉस चेक करता हूँ। काम मैं नहीं करता, मैं मैनेज करता हूँ, और या फिर मेरा मार्केट में रहता है या लिटिगेशन का काम करता हूँ सर। तो अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा सर, सोचना पड़ेगा, वो काम हमें छोड़ने पड़ेंगे, फिर होता है कि हम उसी में फंसे रहते हैं। तो मैं उन 2 बच्चों को मैंने देख के बड़ा हैरान हुआ कि 3 साल पहले सीए बने हैं, 3 साल के एक्सपीरियंस में दे आर डूइंग फॉरेंसिक ऑडिट। सो वी हैव द न्यू असाइनमेंट, वी हैव द न्यू अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, बट हम अब फॉरेंसिक असाइनमेंट लेने के लिए सर ऐसा तो है नहीं कि मैं पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट और मुझे फॉरेंसिक मिल जाएगा, नहीं सर। You have to complete the certification course of FAFD, Forensic Accounting and Fraud Detection, अगर डोमेस्टिक लेवल पे अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द ग्लोबल लेवल की अपॉर्चुनिटी, देन यू हैव टू गो फॉर द CFE, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर। पढ़ना पड़ेगा सर। मैं हमेशा राजेश सर का धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि वही राजेश तो सर के मुश्किल है प्लेटफॉर्म, पढ़ना सर, पढ़ना ही बहुत पढ़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। और जो सर पढ़ता है ना सर, मैंने ये बात कपिल गोयल जी से भी सीखी है, एडवोकेट हमारे कपिल गोयल जी बहुत पढ़ते हैं सर, बहुत पढ़ते हैं। बहुत पढ़ते आहूजा सर बहुत पढ़ते हैं सर, ऑलवेज सर। सैल्यूट टू आहूजा सर। स्पीकर सारे लोग पढ़ते हैं सर, स्पीकर सारे लोग पढ़ते हैं सर। जी आप सर, भी जी सर। यहाँ आए हो तो अभी इससे पहले 2-2.5 घंटे पढ़ करके आए हो, ये गारंटी है, चाहे कितना भी आपका सब्जेक्ट लवली हो। जी 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 सर, वो देखिए ना सर, आप देख सकते हैं कि गाइडलाइंस के आगे मैंने कितनी बार पेन चलाया हुआ है। मैं अभी सर, मैंने राजेश सर को बोला था मैं ट्रेवलिंग में हूँ, गाड़ी में पढ़ रहा था, ड्राइवर मुझे देख रहा था कि इनके बाल सफेद हो गए, अभी भी पढ़ रहे हैं। वो कह रहा तो होगा इनसे तो अच्छा मैं मैं ही हूँ। वो कहता सर मैं गाड़ी गाड़ी चलाता हूँ, इनको छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ, सुधार जी फिर काम कर रहे होते हैं, गाड़ी में बैठते तो पढ़ रहे होते हैं, इनका तो कभी आराम ही नहीं है। और दूसरा मैं ऑलवेज थैंक्स टू राजेश सर। जब मैंने इनका प्लेटफॉर्म पिछले साल ज्वाइन किया ना, जूम का, जब राजेश सर ने राजेश सर का पहले नंबर पे नाम आता है, जब जूम वालों को भी पता है कि सबसे ज्यादा करोल बाग में, दिल्ली में और करोल बाग में चलता है तो जूम चलता है तो राजेश सर का चलता है। जब मैंने सर के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया सर, थैंक यू टू यू सर, ऑलवेज सर के जब प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया, मैं एज ए स्पीकर ज्वाइन नहीं किया था सर, आई वाज अ लिसनर। सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि सिंह साहब आप इन फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप इनके प्रोफाइल को इनको इंट्रोड्यूस कीजिए, हमारे फैकल्टी हैं, हमारे स्पीकर हैं आज के। आप देख सकते हैं, सभी मेंबर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, नॉट मोर देन 365 days and I'm sitting here as a speaker just because of our big brother Rajesh ji, इन्होंने मुझे गाइड किया और मैं आज यहाँ पे स्पीकर बन के बैठा हूँ सर। ये सब चीजें हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना है, हमें पढ़ना है, हमें बड़ा सोचना है, तब जाके नेटवर्किंग का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द फर्म दैट हैव डेवलप्ड एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन हैव द प्रोस्पेर्ड। ये इसमें जहां पर एक्सपीरियंस की बात आती है, स्पेशलाइजेशन की बात आती है, बड़े लेवल पे ही होता है, छोटे लेवल पे स्पेशलाइजेशन कभी नहीं होता। Firm they have the network and form a larger structure have by a large scaled up। ये तो ऑलरेडी हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चली है वो चली है पिछले साल से, टेक्नोलॉजी। 1990 के आसपास मोबाइल आया था, और मोबाइल के आते ही सर इतनी स्पीड तेज हो गई ना डेटा ट्रांसमिशन की, क्योंकि पहले तार भेजते थे, चिट्ठी जाती थी, मम्मी 10 बार उसमें करेक्शन लिखाती थी, कराती थी कि मामा को ये मत लिख, मामा को वो मत लिख, मामा नाराज हो जाएगा। आज हमारा एक छोटा सा व्हाट्सएप जाता है एंड एक सिंगल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 256 के पास जाता है और सब जगह जाता है। उसके बाद फिर देन फाइनेंस आई इंडिया में, और आज ये 2020 में जो टेक्नोलॉजी आई है, ये जूम की या नेटवर्क की, ये सब चीजें, इन्होंने इतना ज्यादा वास्ट उसमें चेंज कर दिया कि यहाँ पर एक चीज आई, द काउंसिल ऑफ द ICAI विद द व्यू ऑफ ensuring small and medium practitioner to stay relevant with the timing and has enabled the CA firm to LLP so as to overcome the limitation of number of partners sir। हमें पता है कि पार्टनरशिप में अगर हम जाते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, then we have the limitation of the partnership, but when we go for the LLP, एक तो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन, डोमेस्टिक लेवल पे तो है ही, ग्लोबल लेवल पे भी जितने भी बड़ी चार्टर्ड फर्म्स है, टॉप 20 चार्टर्ड फर्म्स, अभी भी थोड़े दिन पहले एक हमारे स्पीकर साहब आए हुए थे, जब मैं दूसरे स्टडी सर्कल में बैठा था सतीश जी के साथ, उनकी भी LLP है, मोर देन 28 पार्टनर्स सर। मैं राजेश सर सोच के भी हैरान होता हूँ कि 28 पार्टनर्स का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी है।
So LLP is the form. Next, merger so as to form a large structure. ये भी मैंने आपको बोल दिया, large structure के लिए, larger structure के लिए आपको merger चाह रहा है and establish multidisciplinary firms. उसके लिए भी काम करना है. अब ये सारी चीजें होगी कि ये सब चीजें वो हैं. अब आते हैं गाइडलाइंस के ऊपर. सबसे पहले मैं डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशन बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ अलायंस वगैरह क्या है, क्योंकि टॉपिक छोटा तो नहीं है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है. सबसे इंपॉर्टेंट द अलायंस. एनेक्चर 1 में जो गाइडलाइंस फॉर द अलायंस है, उसमें अलायंस वर्ड को एक्सप्लेन किया कि अलायंस क्या है. अलायंस मींस द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप ऑफ ए इंडियन सीए फर्म दैट हैव कम टुगेदर फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट बाय पूलिंग. अब सर यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर योर अटेंशन. बाय पूलिंग रिसोर्सेज. मैंने राजेश सर की फर्म के रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, राजेश सर ने मेरी फर्म के रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, मैंने आनंद हुआ सर की फर्म के रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, मैंने गिरीश भल्ला जी की फर्म के रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, मैंने बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मार्केट में बैठे हैं उनके फर्म के रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, बिकॉज वी आर एक्चुअली इन द अलायंस, द पार्ट ऑफ अलायंस. सो पूलिंग रिसोर्सेज शोकेस देयर कंबाइंड स्ट्रेंथ. मुझे मार्केट में बताना है कि वी आर वर्किंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अलायंस. ये इसके अलायंस की डेफिनेशन में. एंड हैव यूनिफॉर्म पॉलिसीज. जब हम अलायंस के ऊपर काम करेंगे तो पॉलिसी इतना मायने नहीं करती. जब हम लीड फर्म के साथ काम करेंगे ना, नेटवर्क विद द लीड फर्म, तो सर वहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिसी डिजाइनिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, अथॉरिटी के लिए, अथोराइज पर्सन के लिए हमें एक एक चीज की पॉलिसी बनानी पड़ेगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे. इवन हमें अकाउंटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी कंप्लायंसेस, जीएसटी की रिटर्न, ये सारी चीजों को हमें प्रॉपर वे में डिपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा. आप सोचें कि जितनी बड़ी फर्म होती है ना उसके डिपार्टमेंट होते हैं. आज मैं किसी यंग बच्चे से पूछता हूं, बेटा आज सीए चल रही है? कहते हैं हाँ जी सर चल रही है. मैं कहां से कर रहे हो ट्रेनिंग? कहते सर एक लॉ अपना चार्टर्ड फर्म है, बिग 4 है. अच्छा कहाँ पे हो? वहां पे क्या करते हो? ये ऑडिट वगैरह करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो? सर मैं एक्चुअली ना मैं हूँ लिटिगेशन में. अच्छा लिटिगेशन में, वहां पे डिपार्टमेंट भी है? तो यस सर, बड़ी बड़ी फर्मों में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है. किसी ने ट्रेनिंग की है टैक्सेशन में, किसी ने ट्रेनिंग की है अकाउंटिंग में, किसी ने ट्रेनिंग की है इसमें फाइनेंस मैनेज, वो दूसरे उसमें क्या नाम, उसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, किसी ने ट्रेनिंग की है लिटिगेशन में. When we have the big firm, definitely we have to form that firm and we have to divide each and every work in a different department. So that is the quality. So alliance में ये भी काम करना पड़ेगा. Uniform policy, technology and showcase themselves as a one big unit. अब हम चारों की, गिरीश सर की, आनंद सर की, राजेश सर की, मेरी अपनी चारों, हमारी फर्म इंडिविजुअल जो है जिसमें हम अटेस्ट फंक्शन करते हैं वो चल रही है सेपरेट. उसमें कोई रिस्क नहीं है. मुझे भी डर नहीं है कि राजेश सर मेरा कोई क्लाइंट ना ले जाए, मुझे डर नहीं गिरीश सर मेरा क्लाइंट ना ले जाए, उसमें कोई इश्यू नहीं है. बट वी हैव वन सेपरेट अलायंस जहां पर हमारी चार्टर्ड फर्म, चारों चार्टर्ड फर्म जुड़ी हुई हैं और अलायंस क्रिएट हो रखा है. एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और है, कहते हैं एंटिटी को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज एंटिटी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस. दैट फर्स्ट वन इज द सोल प्रोप्राइटर फर्म. सोल प्रोप्राइटर फर्म सर, इंडिविजुअल नेम नहीं सर, मैंने पहले बोला था इंडिविजुअल नेम नहीं. पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एनी सच फॉर्म ऑफ एंटिटी एज मे बी परमिटेड बाय द लॉ. कोई भी और एंटिटी भी हो सकती है. वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर, सर्विसेज वाली वो कंपनी भी हो सकती है, नेटवर्क का पार्ट बन सकती है क्योंकि वो नॉन अटैच फंक्शन करती है, वो भी हो सकती है. एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अलायंस गाइडलाइंस वुड कंप्राइज ऑफ दोज registered with the recognized professional body in India like ICAI. आपको उसमें रजिस्टर्ड होना है. एक ये पॉइंट. रेफरल प्रैक्टिस को भी इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि रेफरल प्रैक्टिस मींस द अरेंजमेंट टू फैसिलिटेट एक्सेस टू एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज. फर्स्ट वन, मेरे क्लाइंट का केस लग गया, मुझे इनकम टैक्स जाके उस केस को रिप्रेजेंट करना है और मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. मैंने सर को फोन किया, राजेश सर को, राजेश सर ने मुझे गाइड किया, सिंह साहब उसमें जब आप जाए ना रिप्रेजेंट करने, ये पॉइंट उसमें ना पहले तो उसमें अपील में डाल दीजिए, ग्राउंड ऑफ अपील में. उसके बाद जब केस को रिप्रेजेंट करें, देन दीज आर द जजमेंट ऑलरेडी, दिल्ली कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये उसमें मेंशन कर दिए, केस को एक्सप्लेन कर दीजिए. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट राजेश सर ने ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज, उन्होंने अपनी नॉलेज को ट्रांसफर किया, तो मैं आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट नॉलेज, द एक्सपीरियंस ऑफ राजेश सर, आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द एक्सपीरियंस.
right? So that benefit तब मुझे मिलेगा when I'm working as a part of alliance, when I'm working as a part of network, when I'm working as a part of network with a leading firm. That is very important. डेटाबेस में हमने सर्वर एक कॉमन कर लिया, हमारी कॉस्ट शेयरिंग होगी। हमने 5 लाख का सर्वर लगा लिया बड़ा, हमारी 4 फर्में, गिरीश सर, अनंत सर, राजेश सर, मैं, हम चारों फर्में मिल गई, 5 लाख का बड़ा सर्वर लगा लिया, हमारी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई होगी। मैं अकेला 5 लाख नहीं लगा पा रहा था, बट सबने मिलकर लगा लिया शेयरिंग में। टूल्स, उसके अलावा टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, बेस्ट प्रैक्टिस, ये सारी चीजें, सारे बेनिफिट हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओनली रजिस्टर्ड फॉर्म, ये मैंने कर दिया, नेम विड्रॉल ये भी हो गया। चलिए अब आते हैं इस पे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बोला था ये वाला सर, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट आ गया सर इसमें सर, नेम का। इंस्टीट्यूट ने बड़े ही अच्छे तरीके से जब गाइडलाइंस बनाई है उसको प्रॉपरली उसको फॉर्मेटिंग की है। उसमें पहला पॉइंट अलायंस वाला, अप्रोच ए, 3 अप्रोच, अप्रोच ए, अप्रोच B1, अप्रोच B2, 3 अप्रोच है। अप्रोच ए में अलायंस है, कहता है कि जब 4 चार्टर्ड फर्म मिलती हैं, लेट्स से ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, सी एंड कंपनी, डी एंड कंपनी कम टुगेदर और वो उसको अलायंस की फॉर्म देती हैं, तो उनके नाम के आगे क्या आएगा, उनका नाम फर्म का कैसे लिखा जाएगा, ए बी सी डी एंड अलायंस, एंड अलायंस। जब मैं नेटवर्क की बात करूंगा तो उसमें वही चारों फर्म, ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, सी एंड कंपनी, डी एंड कंपनी जब जुड़ेंगी तो नाम क्या लिखा जाएगा, ए बी सी डी एंड एफिलिएट्स, या फिर ए बी सी डी एंड नेटवर्क। ये मैं आपको नेम के लिए बता रहा हूं कि जब 4 फर्में मिलके रजिस्टर्ड हो जाएंगी और नेटवर्क का रूप बन जाएंगी, अलायंस का रूप बन जाएंगी, नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म बन जाएंगी, तो अलायंस के केस में बनेगी ए बी सी डी एंड अलायंस, उसका नाम ऐसे लिखा जाएगा। और एक और बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी स्टेशनरी में, आप अपने ऑफिस स्टेशनरी में, अपने विजिटिंग कार्ड में, इवन यू कैन राइट I am working as a part of this alliance, the part of this network, the part of this network with the leading firm, आप उसमें लिख सकते हैं the member, right? उससे क्या बेनिफिट होगा, हमारा क्लॉज 6 और क्लॉज 7 है जहां पे एडवर्टीजमेंट और सॉलिसिट की बात होती है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने हमें थोड़ा सा एक फ्रीडम दी है कि आप अपने विजिटिंग कार्ड में, अपने लेटरहेड में ये लिख लें कि यू आर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस, पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। Maybe you will get some work from the market when we are working, right? So ABCD and affiliates और ABCD network, ये नेटवर्क के केस में। अब मैं बात करता हूँ लीडिंग फर्म, वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे, यहाँ पर सर ABCD नहीं आएगा। यहाँ पर जहाँ पे मैं बात कर रहा था राजेश सर की फर्म को मैंने लीडिंग फर्म बनाया, राजेश सर की पुरानी फर्म है उसके उनके साथ हम चल रहे हैं, तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, ए एंड कंपनी, उसमें लिखा जाएगा ए एंड कंपनी चूजन एज अ लीड फर्म, then the name of the network will be A and company and affiliates। अब यहाँ पे A and company आ गया, मान लीजिए राजेश अग्रवाल एंड कंपनी, ऐसे हम लिख देते हैं राजेश अग्रवाल एंड कंपनी एंड एफिलिएट्स, मतलब राजेश अग्रवाल सर की जो फर्म है वो लीडिंग फर्म है, या फिर इसको नेटवर्क के रूप में भी ले सकते हैं, राइट? तो ये आ गया सिर्फ नेम का, जो गाइडलाइंस का सबसे पहला रूल आ गया। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन सबका सेम है। जब आप अलायंस को रजिस्टर्ड करेंगे, विल बी रजिस्टर्ड विद द ICI, IC विल अलॉट ए यूनिक अलायंस रजिस्ट्रेशन नंबर। इन द केस ऑफ अलायंस द इंस्टीट्यूट विल इशू एक नंबर जिसको बोलते हैं ARN नंबर। ARN नंबर वो आप GST वाला ना समझे, अलायंस रजिस्ट्रेशन नंबर, द एब्रिविएशन ऑफ अलायंस रजिस्ट्रेशन नंबर इज ARN। जब मैं नेटवर्क को रजिस्टर्ड करूंगा ICI के साथ तो नाम होगा NRN, नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर। और जब मैं लीडिंग फर्म को करूंगा तो भी मेरी एब्रिविएशन NRN ही रहेगी, नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आफ्टर रजिस्टरिंग योर फर्म विद द ICI एज ए नेटवर्क, एज ए अलायंस, एज ए नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म, यू विल गेट वन नंबर, यूनिक registration number. In the case of alliance you will get ARN number. In the case of network and a network with the leading firm जहाँ पे B1 और B2 अप्रोच है वहां पर आपको मिलेगा NR नंबर, यानी कि नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा प्रैक्टिस,
तीसरा पॉइंट प्रैक्टिस की बात की थी, प्रैक्टिस में क्या है, पहले अलायंस की बात करते हैं। अलायंस में प्रैक्टिस वर्ड को क्या लिखा गया, फर्म आर फ्री टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज इंडिपेंडेंट फर्म। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर मैं किसी अलायंस का नेटवर्क का पार्ट बन जाऊं तो भी मेरी मान लीजिए जो प्रोप्राइटरशिप चल रही है उस मेरी प्रैक्टिस के ऊपर, उस प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, वो अपने आप चलती रहेगी, मैं उसमें अटेस्टेशन फंक्शन करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट फर्म डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द अलायंस, यानी अगर मैंने कोई एक अलायंस क्रिएट भी कर दिया, despite of that my proprietorship firm are running without any damage. Alliance may be direct the best practice to be followed by the individual or the firm जो उसमें alliance का पार्ट बनी, बट नेट उसकी बात करूं नेटवर्क भी उसमें भी सेम है, कह रहा फर्म आर बाउंड बाय इंटरनल इंटीग्रेशन एग्रीमेंट। यहां पे एक चीज नहीं आ गई, मान लीजिए हम 4 जनों ने मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट किया, अलायंस में एग्रीमेंट नहीं है, बट इन द केस ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म देयर इज अ वन एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म, दोस आर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। वो इंटरनल इंटीग्रेशन एग्रीमेंट हमें बनाना पड़ेगा और उसका जो ड्राफ्ट है इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे अभी उसको डिजाइन कर रहे हैं, अभी आपको बनाना नहीं है, इवन आई एम ऑल्सो वेटिंग कि वो ड्राफ्ट एक बार इंस्टीट्यूट की तरफ से आ जाए, फिर विद द हेल्प ऑफ दैट ड्राफ्ट अगर मेरी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो दूसरी चार्टर्ड फर्म के साथ होंगी तो मैं उसको प्लस माइनस कर सकता हूं, बट ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट हमें यस पोर्टल पे डालेगा, वो जैसे तैयार हो। एंड प्रैक्टिस एज ए इंडिपेंडेंट फर्म, वो भी उसमें भी वही है कि आपकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस पे कोई फर्क नहीं, मेरी पार्टनरशिप फर्म, राजेश सर की पार्टनरशिप फर्म, दुआ सर की, मनोज सर की पार्टनरशिप फर्म चल रही है और हम अपने अपने फर्म का नाम लेकर एक नेटवर्क भी क्रिएट कर देते हैं। अब हमें फर्म में क्या काम करना है, फर्म में सिर्फ अटेस्टेशन फंक्शन करना है, क्योंकि वो हम नेटवर्क में नहीं कर सकते, और नेटवर्क को अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए उसमें नॉन अटेस्ट फंक्शन हम कर सकते हैं, उसकी टर्नओवर उस हिसाब से कर सकते हैं, राइट। बट मर्जर के केस में अलग है, उसके केस में अलग है, हर चीज के ना प्लस एंड माइनस है, 4 प्लेटफॉर्म है हमारे पास। अब मैं उसकी बात करता हूं, लीडिंग फर्म, द फर्म कैन हैव एन इंटरनल एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजिंग, यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना से जो जो वर्ड नए आ रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा फोर्सफुली एक तरीके से जो बोलते हैं उनको मैं बोल्ड करता हूं, अंडरलाइन करता हूं। रिकॉग्नाइज वन ऑफ द फर्म एज ए लीड फर्म, मैंने थोड़ी देर पहले बोला राजेश सर के साथ मैंने नेटवर्क बनाया, लीडिंग फर्म वाला, राजेश सर की फर्म लीडिंग फर्म है, तो वहां पर सर की फर्म का नाम आएगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ए एंड कंपनी एंड एफिलिएट्स, ए एंड कंपनी एंड नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग फर्म, राइट, ए एंड कंपनी। आगे चलते, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलिज्म and expertise required for each assignment। जब लीडिंग फर्म हम लेके चलेंगे राजेश सर की फर्म को, तो वहां पर मार्केट में ये देखा जाएगा कि इस लीडिंग फर्म के नेटवर्क में नंबर ऑफ प्रोफेशनल कितने हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने रिसोर्सेस हैं, बट काम जो मिलेगा वो लीडिंग फर्म के नाम से मिलेगा, और उसके बाद वो काम जो है, जैसे राजेश सर की फर्म के नाम से काम मिला, नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म है, वो काम आएगा, काम शेयर होगा, उसकी फीस भी शेयर होगी, बट शेयर कैसे होगी, उसके लिए हम एक इंटीग्रेशन वाला वो जो अपना जो एग्रीमेंट है, इंटीग्रेशन एग्रीमेंट, वो हम डिजाइन करेंगे म्यूचुअली, और उसका ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट से आएगा, उसके बेसिस पर required for each assignment the individual firm can carry on the practice as an independent firm। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो प्रोप्राइटरशिप चल रही है, आपकी जो पार्टनरशिप चल रही है, उसके जो क्लाइंट हैं उनकी शेयरिंग कहीं पर भी नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं होगी। मैंने कई चार्टर्ड फर्म को देखा है जो क्या करते हैं, बैंक ऑडिट के लिए मर्जर कर देते हैं, और मर्जर करने के बाद अपनी प्रोप्राइटरशिप भी चलाते रहते हैं, और अपनी प्रोप्राइटरशिप में वो सोचते हैं कि जी हम अपने ये काम कर लें, वो काम कर लें। मैं बोलता हूँ सर वहां पे 100% आपको एसोसिएशन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको वो बैंक ऑडिट नहीं मिलते, आप उसमें एलिजिबिलिटी में फिट नहीं बैठते, राइट। सो आगे चलते हैं, एम्पेनलमेंट वाला अलायंस में कहता है ऑल फर्म्स इन अलायंस कैन अप्लाई फॉर द एम्पेनलमेंट सेपरेटली एज इंडिविजुअल फर्म, so their coming together is basically for the non audit service। ये मैंने आपको पहले बोल दिया कि नॉन ऑडिट सर्विस में आप नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, अलायंस को यूज कर सकते हैं, नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म कर सकते हैं, बट अटैच फंक्शन के लिए आप अपनी इंडिविजुअल फर्म से अप्लाई कर सकते हैं, सेम सबके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फ्लिक्ट
ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। conflict exists, for example, if one firm does statutory audit of an entity, another firm in alliance cannot do internal audit. ये पॉइंट भी मैंने पहले जब मैंने कुछ 12-13 क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए थे वहां पर मैंने ये कर दिया था, बोल दिया था कि कोड ऑफ एथिक्स में जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है वहां पर जब आपकी डिफरेंट फर्म उस अलायंस का पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट है या नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म है, एक फर्म अगर इंटरनल ऑडिट कर रही है तो दूसरी फर्म स्टार्ट ऑडिटर नहीं हो सकती if you are working as a part of the alliance or the network. If one firm does audit work, another firm is in the alliance cannot perform the non-audit service. ये भी हमारे कोड ऑफ एथिक्स में भी लिखा है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि नॉन ऑडिट वर्क भी अगर आप करते हैं तो भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट में काउंट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसको म्यूचुअल बेनिफिट तो खैर बहुत सारे हैं, शेयरिंग और नॉलेज, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, कह रहे इन केस ऑफ एनी डेलिक्वेंसी, अगर कोई ऐसी गिल्टी हुई, कोई गिल्ट हुआ, तो देयरफॉर द डिवीजन ऑफ द वर्क नीड टू बी वेल डॉक्यूमेंटेड। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप अलायंस बनाएं, जब भी नेटवर्क बनाएं, उसको प्रॉपरली अपने लेवल पे डिजाइन करें। नेटवर्क में तो आपको ड्राफ्ट तैयार करना है, alliance as well as, that is, whatever cannot be done by the firm cannot be done by alliance as well. Accountability में क्या लिखा है कि अगर किसी काम को कोई फर्म नहीं कर सकती, उसमें लिखा है whatever is alliance as well as, that is whatever cannot be done by the firm. अगर कोई काम फर्म नहीं कर सकती तो उसको अलायंस भी नहीं करेगा। कोड ऑफ एथिक्स की गाइडलाइंस सारी एप्लीकेबल है। पार्टनर्स ऑफ द फर्म दैट गेट्स अपॉइंटमेंट विल साइन द रिपोर्ट एंड द सर्टिफिकेट। अब यहां पे सोचने वाली बात, अलायंस की बात करते हैं। पहले अलायंस में हम चारों मेंबर जो हैं अलायंस का पार्ट बन जाते हैं, राजेश सर, मैं, दुआ सर और मनोज सर। काम मान लीजिए राजेश सर लेके आए मार्केट से अलायंस में, तो यहाँ पे साइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राजेश सर की। मैं काम लेके आया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इन केस उस काम में कल को प्रॉब्लम हो जाती है, नॉन कंप्लायंस हो जाता है, then I will be the responsible person। चाहे वो नॉन अटेस्ट फंक्शन का काम है, MIS का हो सकता है, बजटिंग का हो सकता है, कंसल्टेंसी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। नॉन अटेस्ट फंक्शन में बहुत सारे काम आते हैं जो अटेस्ट में नहीं आते, राइट। उसके बाद alliance shall have to submit, the partner of the firm get the appointment will sign report। ये हो गया। alliance shall have to submit to ICI a copy of an internal agreement signed by the authorized partner of all the involved firm। ये सभी में एप्लीकेबल हो गया एक तरीके से। पहले जो पॉइंट आ रहा था उसमें ये वर्ड नहीं था, यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट में मैं देख रहा हूँ कि गाइडलाइंस में ऊपर मेंशन नहीं किया इंटरनल एग्रीमेंट, जो नीचे मेंशन कर दिया। अलायंस में भी मेंशन कर दिया, नेटवर्क में भी मेंशन कर दिया, और नेटवर्क और लीडिंग फर्म में तो था ही, बट अलायंस में नहीं था, ऊपर नहीं था, नीचे ऐड कर दिया। बट जब मैं नेटवर्क की बात करता हूं, द पार्टनर ऑफ द फर्म दैट गेट्स अपॉइंटमेंट विल साइन, ये तीनों में एप्लीकेबल है, तीनों में जो काम लेके आया। अच्छा, लीडिंग फर्म की जो बात कर रहे थे राजेश सर वाली फर्म की, जहां पर राजेश सर की फर्म को लीड फर्म का नेटवर्क बनाया था, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राजेश सर की हो जाएगी, क्योंकि राजेश सर की फर्म का नाम लीड फर्म है। लीडिंग फर्म नेटवर्क, वो जो नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म आ रहा है, वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कल को ये नेटवर्क सर, राजेश सर, अगर हम इसको बंद कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं, इसको एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी प्रॉफिट होगा ना सर, जो भी पैसा होगा, वो आपको सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये भी पॉइंट। और वो डिस्ट्रीब्यूट कहां से होगा? वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो एग्रीमेंट बना है शेयरिंग वाला, उस परसेंटेज बेसिस पर होगा। वो पॉइंट भी यहां पर आ रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कहता है फर्म आर फ्री टू ज्वाइन एंड फर्म आर फ्री टू एग्जिट। आप जब मर्जी चाहें, जिस मर्जी नेटवर्क को ज्वाइन करें, बट एक टाइम पे दो नेटवर्क नहीं ज्वाइन कर सकते, एक टाइम पे दो अलायंस नहीं ज्वाइन कर सकते, एक टाइम पे दो नेटवर्क विद द लीडिंग फर्म नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर आप दूसरे को ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले को ज्वाइन कर रखा है, तो उसको छोड़ो, तब दूसरे को ज्वाइन करो। जैसे होता है ना, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट वर्क इन द इंडस्ट्री एज एन एम्प्लॉय। If you want to work with the industry as an employee, then you have to first surrender the COP. But if you're working as an employee and you want to start your practice, then first you have to leave the company and then you can join. Then you have to first apply for the COP, then you can start your practice. So दो चीजें नहीं रहेंगे इकट्ठे, ना नेटवर्क ना अलायंस। आगे चलो।
much more easier to quit the arrangement. If one or more firm want to quit the alliance or the network, that is very easy. तो ये important point जो थे वो already सर मैंने cover कर दिए. इसमें एक चीज जो है ना सर वो लिखी हुई है कि the issue that need to be kept in mind is wherever appointment letter is taken in the name of lead firm. लीड फॉर्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग फर्म की है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सबकी भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लीड फर्म की है, बट कहीं ना कहीं लीड फर्म का नाम हर जगह सर जाएगा, मार्केट में हर जगह जाएगा और वो नेटवर्क भी बहुत बड़ा होगा. द नेम ऑफ द लीड फर्म, अदर फर्म्स दे मे contribute in completing the assignment but may not be able to claim the credit of the experience of the task. जो सर राजेश सर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि आप लीडिंग फर्म, मैंने आपकी फर्म का नाम लीडिंग फर्म में रखा है, तो जो एक्सपीरियंस होगा इसमें लिखा है may not be able to claim the credit of experience of the task, तो वो जो क्रेडिट जाएगा वो आपकी फर्म को जाएगा, लीड फर्म आपकी थी, बाकी जो उसमें नेटवर्क का पार्ट है उनको नहीं जाएगा. ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं. नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले हर प्रोफेशनल मेंबर, हर प्रोफेशनल पर्सन इसको सोचेगा कहीं ना कहीं, राइट. उसके अलावा ये सब हो गया, इसमें ये वाला कवर्ड हो गया. और नॉलेज डिसीजन ऑफ द अलायंस ये भी मैंने कवर कर दिया. रीजन फॉर द नॉन क्रिएटिंग नेटवर्क, चलिए ये वाला कर देते हैं कि इसमें कहते हैं कि रीजन फॉर नॉट क्रिएटिंग अ नेटवर्क, कौन कौन से रीजंस होते हैं. इसमें लिखा नेटवर्क अमंग्स द इंडियन सीए फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसके ऊपर हमारे रिस्पेक्टेड सेंट्रल काउंसिल मेंबर बहुत काम कर रहे हैं कि रिकॉग्निशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिले. अभी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई, हालांकि काम हो रहा है बट अभी नहीं मिली हुई, जिसकी वजह से ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से. दूसरा रीजन, कंफ्यूजन एज टू अंडर विच लेजिस्लेशन एंड नेटवर्क शुड बी रजिस्टर्ड. कौन सा लेजिस्लेशन में इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा. अभी तो रजिस्टर्ड हो रहा है सिर्फ आईसीआई के पोर्टल पर, इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो रहा है. कहीं ऐसा नहीं है जैसे हमारे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप डीड जो होती है रजिस्टर्ड होती है, राइट, वहां पे रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होती है, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास. अभी वो नहीं है. तीसरा पॉइंट, नेटवर्क कैन नॉट टेक अप असाइनमेंट इन इट्स ओन नेम, तो जो अटैच फंक्शन के असाइनमेंट वो नहीं ले सकते. फियर ऑफ बीइंग ओवर shadowed by the network, thereby lose the identity by the individual firm. ये वाला रिस्क नहीं है. चलिए यहां से अब आगे चलते हैं. सर अभी तक एक क्वेश्चन आई थिंक एक आया है राजेश सर, मैं एक बार देख लेता हूं कि उसमें क्या आया है. क्वेश्चन 2 आए थे. एक तो एमडीपी पे था जो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया. एक एनोनिमस अटेंडी का था जिस क्वेश्चन बहुत बड़ा था. मैंने उसमें लिखा है कि आप अपना नाम बताइए और माइक ऑन कर देंगे, वो डायरेक्ट पूछ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है उनका. योगीराज नवाली जी का आप क्वेश्चन ले लो सर. एक क्वेश्चन योगीराज सर कहते हैं कि हाउ कैन एन इंडियन फर्म बी ए पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल नेटवर्क यूजिंग द नेम ऑफ द इंटरनेशनल फर्म बट साइनिंग विद द नेम ऑफ द इंडियन फर्म नेम. सर अभी इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम आप वेट करो. जो हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो काम कर रहे हैं रिकॉग्निशन के ऊपर, पहले वो वाला काम कंप्लीट होने दीजिए. अभी आप डोमेस्टिक लेवल पे करना चाहते हैं. चलिए आपका क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करता हूं. पहले, वेदर सच फर्म गेट सेपरेटेड आफ्टर 5 years फ्रॉम सच इंटरनेशनल नेटवर्क इन द केस वेदर सच इंडियन फर्म कैन कंटिन्यू विद अर्लियर फर्म नेम. सर ये वाला जो 5 साल वाला आपने जो इसमें पॉइंट डाला है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ मर्जर, नॉट इन द केस ऑफ नेटवर्क. आपकी पुरानी फर्म के ऊपर कोई भी इश्यूज नहीं आएगा. आपकी इंडिविजुअल फर्म एज इट इज चलती रहेगी, चाहे प्रोप्राइटरशिप थी, चाहे पार्टनरशिप थी, चाहे एलएलपी थी. मान लीजिए मनोज जी की, अनंत सर की, राजेश सर की और मेरी, हम चारों की एलएलपी है. हम चारों अपने अपनी एलएलपी के नाम को ज्वाइन करके, राजेश सर का आर, मेरा जे, अनंत सर का ए, मनोज जी का एम, एंड नेटवर्क कर देते हैं या लीडिंग फर्म कर देते हैं. बट हमारी एलएलपी अपने आप चलती रहेगी सर बैकएंड पे. देयर इज नो एनी इशू सर. तो वो दूसरा पार्ट तो आप छोड़ दीजिए उसके ऊपर, वो सिर्फ मर्जर के केस में. जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसके लिए फिलहाल अभी हमें कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने नेटवर्क बनाना है उसके ऊपर पहले वो जो उसकी जो रिकॉग्निशन है, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू वेट फॉर सम अनदर टाइम. जी सर, आई थिंक अभी तक तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है. आप कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी का कोड ऑफ एथिक्स पे भी नहीं है. जी सारी चीज क्लियर है
सर सभी मेंबर वो 15 सितंबर का वो टाइम आ गया तो उसकी वजह से भी फ्री हो गए कि अब हम मनाली जाते हैं, कसौली जाते हैं, घूम के आते हैं तो उसकी वजह से भी। आनंद सर कुछ कहना चाहते हैं आई थिंक। आनंद सर। नहीं, मैं ये एक चीज पूछना चाह रहा था कि आपसे सर कि हमारे इंस्टीट्यूट ने अलायंस की गाइडलाइंस आ गई, नेटवर्क की गाइडलाइंस आ गई, बट ये अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट सो पॉपुलर? प्रॉब्लम्स क्या है सर? इससे रिलेटेड जो अपडेशंस है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो पहली बार जब गाइडलाइंस आई थी तो दैट वाज इन द ईयर 2005। उसके बाद इसको अपडेट किया गया सर 6 साल बाद 2011 में, और अब 2011 के बाद इसको अब 2020 में सितंबर 2020 में सितंबर अक्टूबर 2020 की जो मीटिंग हुई 396 समथिंग जो थी, उसमें इसको दोबारा से इसको कंसिडर किया गया कि कहीं पर जो स्मॉल लेवल पे जो हमारी छोटी छोटी चार्टर्ड फर्म है इसको कैसे बढ़ाया जाए, उनके डर को कैसे दूर किया जाए। तो ये जो अपडेशंस है ना, ये अपडेशंस हमें टाइमली करनी चाहिए। कहीं ना कहीं डिले हुआ, कहीं ना कहीं इसके थॉट प्रोसेस के ऊपर काम, तो कई रीजंस हो सकते हैं सर। अभी? हाँ, अभी भी मतलब इसमें कोई ऐसा कोई मन में से ऐसी आवाज उठ नहीं रही कि इसको फटाफट कर लेना चाहिए। मतलब अभी भी कहीं ना कुछ इश्यूज हैं। अब नेटवर्क का बेनिफिट या अलायंस का बेनिफिट आपने कहा, नॉलेज का बेनिफिट, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज है, सर्वर की आपने बात की, तो ये सब हो सकता है, बट ऑन पेपर यस इट इज, बट प्रैक्टिकली ये हो नहीं रहा। चाहे चार्ट अकाउंटेंट्स के मन में कुछ मिसट्रस्ट का इश्यूज हैं या जो भी इश्यूज हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि एक ही ऑफिस में या जब तक कि एक ही प्रॉपर्टी में बैठेंगे नहीं ना इकट्ठे मिलके, तब तक पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकता। आपके अपने आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके पास स्टाफ है, मैं प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं कर सकता जब तक कि हम एक ही ऑफिस में नहीं बैठे हुए। कॉस्ट सेविंग हो ही नहीं सकती जब तक एक छत के नीचे ना बैठो। और अब एक छत के नीचे बैठने के लिए तो बड़े सिटीज में, खासतौर पे दिल्ली में, तो कॉस्ट बहुत है। कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, आप एक जगह पे ऑफिस कैसे लोगे? और उसकी कॉस्ट मतलब बहुत हाई कॉस्ट है। रेंट पे लेंगे तो भी रेंटल्स बहुत हाई हैं, और फिर उसके बाद उसका शेयरिंग, और हमें आदत पड़ चुकी है जीएसटी सर, जीएसटी इशू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जीएसटी इशू है, टैक्स लायबिलिटी है, बिलिंग है सर। बिलिंग को कैसे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, वो बहुत तो टैक्स लायबिलिटी है भाई साहब। जिस मान लो किसी पार्टनर की नहीं है, वो टैक्स लायबिलिटी तो बियर कैसे करेगा? मिनिमम पेमेंट उसको 30,000 रुपए है। ये इश्यूज आते हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो कि मुझे लगता नहीं सॉल्व हो पाएंगे। ये तो टाइम के साथ ही जाएंगे, या कुछ मतलब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन कुछ और होगा या करना पड़ेगा या कुछ अभी पता नहीं क्या होगा। अभी सर मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म भी बनाई है, वो कंसेप्ट लाए हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन वो एमडीपी, लेकिन सर उसमें भी बड़े इशू है कि अब उसमें कह रहे हैं कि मेजोरिटी सीए की होनी चाहिए। हाँ, मेजोरिटी सीए। सपोज पिताजी सीए है, बेटा एडवोकेट है, तो बोथ कैन नॉट बी पार्टनर। हाँ, वो नहीं हो पाएंगे, उसमें मेजोरिटी का इशू। बिल्कुल सही बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम सीए इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मेजोरिटी सीए की होनी चाहिए, अदर इंस्टीट्यूशन भी कह सकता है कि मेजोरिटी हमारी होनी चाहिए, देन फिर क्या होगा? सर वो लॉ में आई थिंक वही चल रहा है, एलएलबी में वही चल रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है। फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ये तो आपस में इंस्टीट्यूट को बैठ करके सॉल्व करनी चाहिए ना, सारे इंस्टीट्यूट को बैठ करके। बिल्कुल। और प्रॉब्लम यह है कि कंपनी एक्ट में प्रोविजन है कि ऑडिटर वो हो सकते हैं जो इन विच मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब ये एक्ट या तो एक्ट अमेंडमेंट हो, कंपनी एक्ट में प्रोविजन। बिल्कुल, ये बड़ी एक्ट भी अमेंड होगा और बहुत सारे अपडेट्स आएंगे सर। आनंद सर, जो आपने जो 2 पॉइंट बोले ना सर, उसमें से 2 पॉइंट हैं। राजेश सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2 पॉइंट थे, पहले आप बता दीजिए राजेश सर। प्लीज सर, प्लीज। 2 पॉइंट है आनंद सर, जो मेरी जो मैंने अभी पिछले 8-10 दिनों में जो स्टडी किया, उसमें 2 मेजर पॉइंट आ रहे हैं। एक तो पॉइंट आ रहा है कि आप नेटवर्क के बेसिस पर, ऑन द नेम ऑफ नेटवर्क, यू कैन नॉट टेक एनी टेस्ट असाइनमेंट। तो सबसे बड़ा इशू है, नंबर 1। एंड द सेकेंड थिंग एक ये आ रहा है, और दूसरा जो रिकॉग्निशन ऑफ द नेटवर्क है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, पीएसयू के साथ, आरबीआई के साथ, सीएजी के साथ, ये अगर 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए
तो हमारा मर्जर वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा और ये इसमें आ जाएगा। बट वो मर्जर वाली कंडीशन जो 5 साल वाली मैंने बताई थी, जहां पर 5 साल के लिए हम सोचते हैं कि यार मेरी फर्म ना चली जाए, मेरी फर्म ना खत्म हो जाए, वहां पर हमें काम करना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक बिग कि हमें बड़ा, देखो अल्टीमेटली हर प्रोफेशनल यहाँ मार्केट में बैठा है जस्ट टू अर्न ब्रेड और बटर के लिए तो नहीं है। ऑब्वियसली हमारी लाइफ का एक स्टेटस है, हमारी जिंदगी का एक स्टेटस हमें मेंटेन कर रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और सोसाइटी में हमारा बहुत अच्छा नाम है। उसके लिए हमें मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पैसा सभी को कमाना है। तो उसके लिए अगर नेटवर्किंग की गाइडलाइंस में 2 चीजें, एक तो उसका रिकॉग्निशन एंड द सेकंड थिंग उसका वो जो पार्ट है अपना, जो मैंने पहले बोला कि मेरे दिमाग से निकल, पहले वाला पॉइंट जो मैंने बोला था, वो दोनों चीजें, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन मिल जाए और ये सब हो जाए तो उस असाइनमेंट वाला, ऑडिट वाला, वो भी उसे मिल जाए, फिर ये काम बहुत अच्छा हो जाए। अब ऑडिट की जहां तक बात है, 2-3 दिन पहले इंस्टीट्यूट का एक वेबिनार था सर। उसमें एक स्पीकर उन्होंने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी। कदम फ्यूचर में सीएस करेंगे क्या? ये तो नया क्वेश्चन उठा दिया। हाँ, ये एक स्पीकर थे, उन्होंने बोला एएससी एंड एसोसिएट चार्ट अकाउंट्स, उनके मिस्टर सेठी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, वो अजय सेठी। हाँ, अजय सेठी उन्होंने कहा कि अगले पहले कहते हैं 5 साल में, कहते नहीं 5 नहीं 2-3 साल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगी। फिर ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरी तरफ एक और उधर मिस्टर विवेक खुराना का ट्वीट आ रहा था कि एमसीए इज आल्सो थिंकिंग कि उसको जो छोटी कंपनीज हैं, छोटी ऑडिट लिमिट से बाहर कर दिया जाए, लिमिट से बाहर कर दिया जाए। ये हो भी सकता है क्योंकि ऐसा है, यूके में छोटी कंपनियों के ऑडिट नहीं होते। एवरी कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड इन यूके आल्सो। और हम मोस्टली यूके को फॉलो करते रहे हैं ट्रेडिशनली। पहले एक बार ये मूव आई भी थी, हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत अपोज किया, सो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट वाज सक्सेसफुल। बट ये हो सकता है कि ऑन द जैसे प्रेजेंटिव टैक्सेशन है उसी के बेसिस पर इसमें ले आए कि छोटी फर्मों को ऑडिट ना कराना पड़े। तो बेसिकली हमारा जो फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन है उसको तो एक नई डायरेक्शन चाहिए। चाहे तो हम जो स्पेशलाइजेशन है कोई भी, चाहे टैक्सेशन है या अदर फील्ड्स हैं जो न्यू फील्ड्स हैं, उनकी तरफ गाइडेंस मिले, या हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ही जाएं। इंस्टीट्यूट का कोर्स भी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हमें अगर ऐसी जो डेवलपमेंट्स आ रही है उसको देखते हुए हमें गाइडेंस भी चाहिए इंस्टीट्यूट से कि आगे हम क्या करें। यस सर, अपॉर्चुनिटीज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर बहुत सोचना पड़ेगा कि जो हमारी, हाँ, अभी ऑडिट का आप देखो, बैंकों के ऑडिट कितने कम हो गए। छोटी फर्मों को बैंक के ऑडिट कहाँ मिलते हैं, बड़ों को नहीं मिलते। अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बैंक्स भी बोलते हैं कि हम इतना ऑडिट पे एक्सपेंस क्यों करें। प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, ये हर ब्रांच का ऑडिट नहीं करवाते। तो पीएसयू बैंक कहते हैं हम क्यों करवाएं, वो अपॉर्चुनिटी कम हो रही है। हाँ जी, एक सीएजी की ऑडिट है, वो भी छोटी फर्मों को मिलते नहीं, बड़ी फर्मों को ही मिलते हैं। उसमें भी कोई ऐसी कोई लार्ज फीस नहीं है। हाँ जी, तो एक्चुअली तो हमारे प्रोफेशन को एक डायरेक्शन चाहिए जहाँ पर अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई किया जाए, उसी हिसाब से इन गाइडलाइंस को डिजाइन किया जाए। ऑडिट फंक्शन खत्म हो रहा है। इनकम टैक्स में भी पहले लोग जाया करते थे, इनकम टैक्स अब फेसलेस होने के बाद आपको यहीं बैठे बैठे आपको फाइल करना है। अब आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि ऐसी भी गाइडेंस आ जाएगी, या ऐसे पब्लिशर्स आ जाएंगे, या ऑन साइट ऐसी चीजें आ जाएंगी कि आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है उस सेक्शन के सपोर्टिंग ये है, आपके जो केसेस हैं वो ये है, आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। इवन एडवोकेट्स आर थिंकिंग के जो रिसर्च वर्क है वो खत्म हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ही आपको आपके पर्पस की जजमेंट्स निकाल कर दे देगा, सॉफ्टवेयर निकाल देगा। हाँ जी, अभी भी है सर, वो अभी भी है हमारे यहाँ मनुपुत्रा, वो आज भी है सर। यदि आप किसी सेक्शन पे प्रो एसएससी, प्रो रेवेन्यू, प्रो जुरिडिक्शन, तो आप कोई भी लेना चाहो वो इमीडिएट आ जाते हैं सर। वो आपको वो सारी निकल आती हैं, तो धीरे धीरे वो भी स्कोप सब निकल आती हैं, वो भी खत्म हो रहा है। तो अब एक डायरेक्शन तो चाहिए हमारे प्रोफेशन को।
जी 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 नहीं, मैंने खुद ही वो सर गाइडलाइंस में बहुत सारी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान मेंशन की हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, दोज आर द इशू, जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे, सो बेनिफिट ऑफ दैट नेटवर्क विल नॉट बी टेकन बाय द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड फॉर्म जो मीडियोकर लेवल पे या स्मॉल लेवल की चार्टर्ड फॉर्म। है वो कैसे बनाएंगे? उन बेचारों की इतनी इनकम ही नहीं है कि इकट्ठे ऑफिस ले सकें, सर्वर ले सकें, ये है ही नहीं। बड़ी फर्मों का तो मर्जर भी हो सकता है, वो करते भी हैं। बड़ी फर्में ये छोटी फर्मों के साथ मर्जर करेंगे भी नहीं, नहीं करेंगे, अनलेस एक्सपीरियंस चेक होगा, सब कुछ होगा। पर्पस है या कहीं से कोई उनको 20-30 पार्टनर बनाने हैं तो बात अलग है, अदरवाइज वो बात ही नहीं करते। कौन करेगा? ठीक। छोटी फर्मों से मर्जर भी नहीं करेगा, नेटवर्क भी वो क्यों करेंगे? छोटे जो और चार्ट अकाउंटेंट्स हैं उनके ठीक साथ जो ठीक। बिग फर्म है वो नेटवर्क भी क्यों करें? किस लिए हाँ वही करें? बात है सर, वो उनको प्रोफाइल क्या चेक बेनिफिट करेंगे है? पहले, बहुत सारे इश्यूज होंगे। जी सर। उनको क्या बेनिफिट है? वो क्यों करें? वो इश्यूज तो तो बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज तो बहुत सारे, इस पर प्रैक्टिकल काम होना है इश्यूज अभी भी। बहुत है इसमें ना, बहुत प्रैक्टिकल इशू है। जी। अभी इसमें आप देखेंगे इसमें जो एओपी का है कि अगर आप नेटवर्क बनाते हैं तो इसको एओपी की फॉर्म में इसको इनकॉर्पोरेट करना है आपने, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। और उसके अलावा इसका बैलेंस शीट एंड द ऑडिट पार्ट इज आल्सो देयर। आपको इनकम टैक्स रिटर्न के कंप्लायंसेस ये करने हैं, ऑडिट करवाना है, इफ द ऑडिट इज एप्लीकेबल, ये भी कंप्लायंसेस हैं। पर ठीक है, एप्लीकेबिलिटी जो लॉ की है दैट इज परफेक्ट, बट वो जो इश्यूज आपने बताया आनंद सर, जो 2 पॉइंट उसमें से हाईलाइट मैंने किए, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर अभी भी हमारे की कंप्लायंस और रिटर्न वन तो हम सब कर लेंगे, लेकिन जी जी उसमें जी कुछ इनकम तो हो। इनकम तो जी 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 बिल्कुल। नहीं क्या बात यही तो होता घूम है। फिर करके वहीं आ गई। रिटर्न तो भरेंगे। जी 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 नहीं, इसके ऊपर अभी भी बहुत काम होना है सर। आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद सम गाइडलाइंस। इसमें जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो चलो बहुत सिंपल दैट, वो फॉर्म्स बहुत सिंपल है, अप्लाई कैसे करना है सब चीजें ठीक है, दैट इज परफेक्ट कि वो हम कर सकते हैं, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। बट अल्टीमेटली द गोल शुड बी कि हाउ टू एनहांस योर प्रैक्टिस एट द स्मॉल लेवल विद द हेल्प ऑफ दिस गाइडलाइंस। वो चीज अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग आ रही है। और नेटवर्क होने से हम, नेटवर्क होने का एक बेनिफिट तो नजर आता है या कि भाई चलो कॉस्ट शेयरिंग कहीं हो जाए, कॉस्ट कटिंग कहीं हो जाए, लेकिन उससे बिजनेस इंक्रीज होता नजर नहीं आता। जी जी ऐसा कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकली नजर आ नहीं रहा कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा उससे। सर जी जी जीएसटी और इनकम टैक्स एक इतना बड़ा इशू है कि आज भी, और एक बड़ी प्रॉब्लम और आ रही है कि आज मैं जगजीत जी के साथ, आपके साथ अपनी फर्म मर्ज कर लेता हूँ, 5 साल में काम करता हूँ, सॉरी 4.5 साल बाद में अपनी फर्म को डीमर्ज कर लेता हूँ। अब अगले 5 साल इनकम टैक्स और जीएसटी की लाइबिलिटी कोई केस आ जाए, हु विल टैकल इट? कौन इनपुट की जवाब देगा? मैं तो अपनी फर्म डीमर्ज करके बाहर आ गया, जी और डीमर्ज मैंने तभी की जब मेरे रिलेशन ठीक नहीं थे। मैं तो बाद में दुआ साहब का फोन भी नहीं उठाऊंगा, और दुआ साहब फंस गए, उनके पास नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि ये इशू आ रहे हैं सर मार्केट में कि भैया उसकी तो फर्म डीमर्ज हो गई, अब डाटा उसके पास था, एक्सेल शीट से भेजता था, अब डिपार्टमेंट तो इनपुट के बिल भी मांग रहा है और आउटपुट की लायबिलिटी तो चलो कोई बात नहीं है, इनपुट के बिल मेरे पास ही रह गए ओरिजिनल। सर आज भी मेरे क्लाइंट के केस में आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन की उसमें जीएसटी में अमेंडमेंट डाली है, एड्रेस चेंज की। 2 ऑफिसर सर जीएसटी ऑफिस से आए हैं नोएडा में, जबकि कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट क्योंकि है उसमें सर वो डिपार्टमेंट घूम रहा है, आपके पास कंप्लायंसेस हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारी चीजें बनेगी सर, डेफिनेटली सर। राजेश सर। हाँ जी सर। सर ऑर्डर करें सर। अभी 2 अरे क्वेश्चन सर, हमारे पास आए, 2 क्वेश्चन हमारे पास आए हाँ हैं 2 क्वेश्चन ले क्योंकि लो सर, फिर बाइंड अप करेंगे। 2 क्वेश्चन ले लो आप। उसमें से एक तो सर ने शुभम अग्रवाल। क्वेश्चन भी नहीं है सर, दूसरे सर का नाम मत लेना, उन्होंने मना किया नाम लेने के लिए, तो उनका नाम मत लेना। उनका कोई कोड ऑफ एथिक्स पे है, बट उनका क्वेश्चन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। बट हाँ ठीक है, आप अगर परमिशन दें तो आप ही, मैं कहता हूँ मोबाइल नंबर शेयर कर देना, सो दैट अगर वो मेरे से डायरेक्ट बात करके क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे रिलेटेड टू दिस कोड ऑफ एथिक्स। और पहले वाले में शुभम अग्रवाल जी ने बोला है कि सर टर्नओवर लिमिट विल बी कमिंग इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सून। तो वहां पर जो वो बताना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टर्नओवर लिमिट भी आ रही है,
जिसकी जी, वजह जी। से हमारे जो असाइनमेंट और हमारी अपॉर्चुनिटी में थोड़ी लिमिटेशन लगने वाली, जो दुआ सर कह रहे थे। जी सर, सो ओवर टू यू सर। जैसा आपने बोला था, सो ऑलरेडी जो कवर करना जी था सर। मैक्सिमम आई हैव कवर्ड, और मेन जो वो 10 क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिए, जो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें प्लस माइनस चलती हैं सर। सर Okay, sir. Thank you. Thank you very much. I request Anand Dua Saab, please present a vote of thanks. Dua आपने Saab. जगदीश जी तो हमारे ऑलरेडी पैनलिस्ट हैं ही सही, हर बार ये प्रेजेंट होते हैं, नॉलेजेबल आदमी है। इन्होंने इस जो इस टॉपिक पर इन्होंने बड़ी डिटेल्ड इन्होंने अपना डेलिब्रेशन किया। इट वाज वेरी यूजफुल इन द सेंस कि नॉलेज तो बड़ी प्रैक्टिकली कितना काम आएगा ये देखने वाली बात है, और हर एक की अपनी हिम्मत की बात है। हाँ जी, सो वी आर रियली थैंकफुल टू जगदीश सिंह जी फॉर sparing his time and enriching our knowledge. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank थैंक you. यू सर। Thank you very much, sir. थैंक यू Thank you. राजेश सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।